टॉपिक है, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, यूरिन इनकॉन्टिनेंस। और इसको समझना कैसे, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बेसिक से थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि आप लोग अपना इसका कॉन्सेप्ट, ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक हमें इसलिए लगता है क्योंकि हम इसको बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करते। ठीक है, एक तो नंबर वन सब स्पेशलिटी है, यूरोगायनेकोलॉजी एक सब स्पेशलिटी है जिसके बहुत ज़्यादा पेशेंट्स अगर हमारे पास आते हैं तो यूजुअली वी आर नॉट डीलिंग विद दैम। ठीक है, अगर वे डील कर रहे होते हैं तो वी आर नॉट डीलिंग इन दैम इंडिपेंडेंटली। सो दैट्स द रीज़न कि जिसकी वजह से हम बहुत से केसेस को नहीं देख पाते और हम इसकी अंडरस्टैंडिंग लगती है। और जब भी हम ईबीएम में ये चैप्टर खोलते हैं तो हमें एक नाइटमेयर के तौर पे ये चैप्टर लग रहा होता है। ठीक है, तो आप लोगों को सबको स्क्रीन और नज़र आ रही है और मैं भी नज़र आ रही हूँ, विजिबल है? कैन यू सी मी नाउ? हेलो Yes, Dr. जी, Sumaira, everything is ओके clear. ओके, मैम थैंक यू। वॉइस कम है। ओके जी, अस्मा मेरी तरफ से तो क्लियर है बिकॉज माई माइक इज गोइंग ग्रीन ऑल। Voice is clear now. क्लियर, ओके, थैंक यू जी। ठीक है, अच्छा जी, आज का जो हमने बेसिकली आज की टॉपिक की डिस्कशन मैंने आप लोगों के साथ करनी है, जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया है कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के ऊपर है। आई बिलीव सो कि हम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप बेसिक्स को नहीं समझ सकते। और इसके बेसिक को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पास टूल है वो है कि अब वी हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स। हमें फिजियोलॉजी ऑफ द मैच्योरेशन रिफ्लेक्स समझते हैं, हमें एनाटमी का पता होना चाहिए, फिजियोलॉजी का पता होना चाहिए। जब एनाटमी और फिजियोलॉजी हमें बहुत अच्छी तरह से पता होगी तभी मैं पैथोलॉजी को आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, रिकग्नाइज कर सकती हूँ और उसको ट्रीट कर सकती हूँ। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन एक थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको अपने बारे में और मेड एग्जाम के बारे में बता दूं। So I'm Dr. Sumaira Ijaz. I have done my FCPS. I'm also doing my MRCOG, and I have done the USMLE and MD at the same time. I'm looking for my fellowship in minimal invasive gynecological surgeries, inshallah, here in the US. Or why I joined this med exam. I joined it last year after doing my FCPS, and teaching has always been my passion. So I really want to teach people, or especially जब मैंने USMLE कर लिया तो I felt the difference that is we people are we all the gynae girls or my colleagues, and we are lacking in our conceptual based studies. So that was a concept which pushed me forward. Okay, fine, I have to take some step to do something different as all the other people are doing in the market. So that was the reason that I just step into this teaching, virtual teaching. And why I joined the med exam expert. So med exam, if you guys have heard about them, is one of the organization, I must say, that is for the last 5 years, who I must say are the pioneers of the virtual learning. Okay, so they were the first one. They are very famous for their MRCOG, MRCPI, and the other international exams and the all other field. For the last 2 years, they have launched their proper courses for the FCPS. They are doing the FCPS part 1 as well as part 2. There's subspecialty. So many subspecialties are going on, including obstetrics and gynecology. So we started this venture last year. We first took our batch last year, September 2020. It was a great experience. And then we launched the second one, and this is going to be the third one, inshallah. I already started my written batch yesterday. So this is kind of a short class for them as well. So we are all just going through that phase. So I really like the organization because it's a proper organization with proper protocols. It's just not an anonymous thing, and they are very famous for their other exams. So they have some bases as well. They know how to run the exams and different stuff. Okay, so uh, what is the purpose of doing this webinar? Is just to introduce myself and my team and my organization to you guys, so you guys come to know, okay, what we are doing, what we are offering to the community, and how can we help you to pass your exam and help you out in this journey. Okay, so let's get started. So today's learning objectives must be very clear to you guys, what I'm going to teach you. As I told you, that is my concept is we have to make our student learn from the basics.
and then they have to go to the clinicals. So understanding of the maturation cycle, because today's topic is urinary incontinence, I would like you to just make sure that is you'll understand the physiology and the mechanism of the maturation cycle, and then what is a urinary incontinence, what are the different types and treatments, and obviously how we can go for the different kind of the investigation. The rest of the topics will take longer if I'll go into details, but I will confine myself to the first two topics, okay? So that will be our learning objective for the today's session. So as you can see this diagram, this showing that it's a maturation cycle, okay? It's a bladder. There are different type of the nerves are coming and few are going, and how it's working. So I feel when I starting studying myself as a topic of the urogynecology and starting the urinary incontinence, I felt that is we cannot understand. Even I was unable to understand how it's happening, how the incontinence stress and the overbladder incontinence happening, what's happening at the molecular level. So when I started studying myself, I did it from the basic anatomy, physiology, and I so wanted the other people to learn that way, because when you learn once that way, you're not gonna forget about it. Okay, this is the overall, and now from now onward I'm going to discuss the detail about it. Okay, it's just an overview. This is a maturation cycle, how the different nerves are coming, going, and how the system is working. Okay, anatomy is the first, that is how different organs are present over there, what's working. Everyone knows the kidneys produce urine, the urine comes through the ureters into the bladder. The male and females bladder structures, the difference in the sphincters. Male have internal and external sphincters. The females have predominantly the external sphincters. It's a complex of the muscular rings, you can say, but the more predominantly there's an external sphincter. So now when I'm going to discuss the detail about the maturation reflex or physiology of the maturation, I'll be focusing more on the male urethra or the male urinary tract, because it'll be much easier for you guys to understand. Okay, so let's go through the quick anatomy to the bladder. I'm not going to the detail of the surfaces and all that stuff, but I'll just go for the superficial anatomy. That is, the bladder has 3 layers. Okay, serosa, muscularis, and mucosa. We know that is mucosa is the transitional epithelium. The muscular layer is a detrusor muscle, and it is one of the very, very, very important part of the bladder. If I say this is the main part of the bladder which is controlling everything, so I think I'm not going to be wrong about it. And then there is a outer layer, that is a serosa, which is a protective layer. And everyone among you, because all are obstetricians yourself and the residents, you have seen the anatomy of the bladder. It's just like a very smudgy or slushy like a substance when you open the bladder when it's not filled. So just like you cannot define about the surfaces, but when bladder is full, it has 4 surfaces. Okay, it's a trigonal in shapes, and there is a superior, inferior, lateral, and inferior surfaces. Okay, ये यहाँ से आगे onward चाहें तो there is a bladder neck. यहाँ पे आपका internal sphincter पड़ा हुआ है, which is controlled by the sympathetic nerve supply. The other is external sphincter, which is also have a nicotinic and the muscarinic, or the sympathetic and the parasympathetic receptors. And this is a urogenital diaphragm. Okay, so this is a brief anatomy, because I'm not going into the detail of the pelvic anatomy here. Okay, now what's going to happen when the patient is, the bladder is empty and when the bladder is full? So to understand that, so that is what's happening at the molecular level and how the nerve supply is being supplied, we have to go into the detail. First of all, when you look at the picture, this is your brain. Okay, who can tell me that is where is the maturation center is located in the brain? Very simple, basic question. Can anyone tell me where is the maturation center in the brain is located? Okay, hello? Okay, it's a midbrain, pons में located होता है, ठीक है, maturation center आपका. So that's why आपको यहाँ पे
यहाँ पे हमने पॉन्स दिखाया हुआ है, दिस इज अब योर मिड ब्रेन है, ब्रेन है, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड के आपको सबको लेवल पता है, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर और सैक्रल होते हैं। अब इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है कि दो तरह के नर्व सिस्टम है, हमें ये भी पता है स्पाइनल कॉर्ड से सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाईज आती हैं, ठीक है। अब जो ब्लैडर है, अगर यहाँ पे अगर आपको देखें तो यू कैन सी द फ्यू रिसेप्टर्स। अभी मैं जस्ट आपको ब्रीफ रिसेप्टर्स के बारे में बता रही हूँ कि 4 डिफरेंट तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, फंक्शन कैसे हैं वो आगे हम डिटेल डिस्कस करेंगे। सो देयर आर द 4 डिफरेंट टाइप ऑफ द रिसेप्टर्स हैं। 2 मस्करेनिक हैं और 2 आपके पास जो हैं वो पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर्स हैं और 2 आपके पास सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स हैं। एक M3 रिसेप्टर्स जो होते हैं पर्टिकुलरली वो उनको मस्करेनिक रिसेप्टर्स कहते हैं, ये डिट्रूसर मसल के ऊपर अटैच होते हैं, ठीक है। जब भी पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई आएगी ये इसको स्टिमुलेट करेगी, ब्लैडर को डिट्रूसर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगी एंड पेशेंट जो है वो द पर्सन विल गोइंग टू वॉइड, ठीक है। सिमिलरली दूसरा रिसेप्टर अगर आप यहाँ पे देखो, दिस इज एक्सटर्नल स्फिंक्टर, मैंने आपको दिखाया हुआ है, यहाँ पे एसिटाइल कोलिन है विच इज आल्सो पैरासिम्पैथेटिक इन नेचर, बट उसकी जो सप्लाई आ रही है वो पेडेंटल नर्व के थ्रू आ रही होती है एंड दिस इज आल्सो कॉजेज द रिलैक्सेशन। स्टिमुलेशन होगी तो यहाँ पे रिलैक्सेशन होगी। सो 2 टाइप ऑफ द रिसेप्टर विच इज हाईलाइटेड इन द येलो, दैट इज अ मस्करेनिक रिसेप्टर्स एंड द निकोटिनिक रिसेप्टर्स, these are the 2 parasympathetic receptors, right? The other 2 are the sympathetic, उसमें कौन कौन सा है, बीटा रिसेप्टर्स, ठीक है, जो कि डिट्रूसर मसल के ऊपर है, एंड सेकेंड वन इज अल्फा 1 रिसेप्टर जो कि आपके इंटरनल स्फिंक्टर्स के ऊपर लोकेटेड है एंड दे आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय द सिंपैथेटिक नर्व व्हिच इज अ हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। अब ये सारा कम्प्लेक्स काम कैसे करता है, हाउ द सिस्टम इज वर्किंग, उसको फिर हम जो है वो आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। Because to understand all the sphincter mechanism, it was much easier to demonstrate it on the male urethra, तो इसको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर हम ब्लैडर के ऊपर इसको बात करेंगे। ओके, अब 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि जब भी सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई आएगी तो वो क्या करेगी, वो डिट्रूसर को रिलैक्स करेगी, कैपेसिटी इंक्रीज करेगी और यूरिन होल्ड होगा, ठीक है। सो व्हेन आर, और 2 तरह के आपको पता है मैकेनिज्म होते हैं ना, एक होता है वॉलेंटरली वी होल्ड द यूरिन, अदर होता है इनवॉलेंटरली हम होल्ड करते हैं, तो वो आपके ब्रेन से और वो आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। सो जब वॉलेंटरली, फॉर एग्जांपल समवन इज हैविंग वेरी हार्ड टू फीलिंग सो मच प्रेशर, दे हैव टू पी वेरी स्ट्रांगली, देन दिस इज अ टाइम दैट इज सिंपैथेटिक सिस्टम जो है एंड द उसका जो सराउंडिंग है इज नॉट फिजिबल एंड ही और शी डज नॉट हैव एन नियर बाय वॉशरूम, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, बाथरूम नहीं है तो वो क्या करेगा, तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत ज़ोर से फायरिंग करेगा, वो आपके जो स्फिंक्टर्स को टाइटली कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि यूरिन की लीकेज ना हो, ठीक है। सिमिलरली जो पैरासिम्पैथेटिक है वो एक नेचुरल मैकेनिज्म है, जब भी वी हैव टू वॉइड तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्ट करता है और जब हमने यूरिन को होल्ड करना होता है तो सिंपैथेटिक, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट बातें अगर आप अपने जहन में बिठा लोगे तो आपके लिए मच ईजियर हो जाएगा। ओके, अब होता क्या है, जो मैसेज देना है, सेंसरी इम्पल्सेस हैं वो सारी की सारी आपकी यहाँ से आ रही हैं, ठीक है। जो सेंसरी इनपुट आपका देना है या सेंसरी काम करना है वो सारा डिट्रूसर सेल्फ ही कर रहा होता है, ठीक है। तो जो डिट्रूसर होता है वो यहाँ के ऊपर, आई थिंक वी शुड स्टार्ट ड्राइंग इट अलॉन्ग विद दैट ताकि आप लोगों के लिए मच ईजियर हो जाए। लेट मी गेट माई पेन, तो हम उसको ड्रॉ करके देख लेते हैं, ठीक है। सो जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम है, अस्मा कैन यू हेल्प मी कि मैं ड्रॉ क्यों नहीं कर पा रही, क्योंकि अगेन आई हैव टू शेयर अगेन और आपने मुझे होस्ट बनाया है, सो आई कैन नॉट ड्रॉ। Dr. Sumero, you can share again. This should not be the ओके गज, लेट मी गेट बैक टू यू क्योंकि मुझे ड्रॉ करके आपको समझाना है, तो आई स्टार्ट इट शेयरिंग अगेन। ओके, गिव मी अ सेकेंड। अच्छा जी, आई थिंक नो, देयर इज नो annotation something coming up. Asma, I think I'm a co-host, that's why I'm not getting it. Anyways, सो अब हमने करना क्या है कि हमने ये देखना है कि ब्लैडर एम्प्टी हुआ है तो क्या होगा। ब्लैडर जब एम्प्टी हुआ होता है, होता क्या है कि स्लो इम्पल्सेस जो है ना थ्रू द पेल्विक सेंसरी पेल्विक नर्व सप्लाई जाती हैं टू द सैक्रल एरिया,
ठीक है, अगर आप फॉलो यहाँ पे कर सको, यहाँ पे कि जो मेन आपका सेंसरी मसल है, जो सेंसरी इनपुट है, वो आपकी जानी है थ्रू डिट्रूसर मसल। हर दफा चाहे ब्लैडर फुल होगा चाहे एम्प्टी होगा, डिट्रूसर मसल इज द वन जिसने चीजें कंट्रोल करनी है। ठीक है, अब क्या होता है कि अब ब्लैडर तो है वो एम्प्टी है, यूरिन है नहीं, तो स्लो इम्पल्सेस जाती हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड आई एम यूजिंग अगेन एंड अगेन, कि स्लो इम्पल्सेस जाती हैं। स्लो इम्पल्सेस आपके सेक्युलर रीजन में जाती हैं, सेक्युलर रीजन से वहाँ पे एक साइनाप्सिस करती हैं और एक नया न्यूरॉन बनता है, और वो क्या करता है, वो थोरैकोलम्बर रीजन को जाके सिंपैथेटिक स्पाइनल कॉर्ड के अंदर स्टिमुलेट कर लेता है। जो प्रीवियस मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी, ठीक है, उसमें अगर आप देखो तो आपने को मैंने ये बताया था कि सिंपैथेटिक सिस्टम के ये पार्ट्स हैं डिफरेंट। ठीक है ना, सिंपैथेटिक सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स हैं इसमें, स्पाइनल कॉर्ड के, जिसमें सर्वाइकल है, थोरैसिक है, लंबर है और सैक्रल है। अगर आप इस पिक्चर में गौर से देखो तो यहाँ पे है कि स्लो इम्पल्सेस आ रही हैं, वो सैक्रल रीजन को स्टिमुलेट करती हैं, वो थोरैकोलम्बर एरियाज में जाके वहाँ पे कर रही हैं, वो डायरेक्टली ब्रेन के पास मैसेज लेके नहीं जा रही। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, कि जब भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो स्टिमुलेशन होगी, वो आपकी होगी वाया सैक्रल स्पाइनल कॉर्ड के कॉर्ड्स के थ्रू। ठीक है, वहाँ से वो थोरैसिक को स्टिमुलेट करेगा, वहाँ से जो है एक आपका जो है वो हाइपोगैस्ट्रिक गैंग्लियन पड़ा हुआ है, वहाँ पे साइनेप्सिस होगा न्यूरॉन का फर्स्ट ऑर्डर का, वहाँ से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन निकलेंगे और वो सिंपैथेटिक, एंड दिस इज नोन एज अ हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। ठीक है, जो आपकी ये वाली नर्व है रेड में, इसको हम कहते हैं हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, और ये सप्लाई करती है आगे B3 और अल्फा 1 रिसेप्टर्स को। ठीक है, B3 कहाँ पे लगे हुए हैं, डिट्रूसर के ऊपर है। अल्फा 1 कहाँ पे लगे हुए हैं, आपके इंटरनल स्फिंक्टर के ऊपर लगे हुए हैं। तो जब ये इनको स्टिमुलेट करती है तो यहाँ पे क्या करती है, रिलैक्सेशन। ठीक है, इट्स ऑपोजिट, जब भी B3 रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे इट विल कॉजेज द स्टिमुलेशन। ओके, उसके बाद जब आपका सेकेंड पॉइंट आ जाता है, उसके ऊपर क्या होता है, दिस इज अल्फा 1 रिसेप्टर्स। अल्फा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे तो दे विल कॉजेज द पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्फिंक्टर। ये दो है, ऑपोजिट होते हैं हमेशा। ठीक है ना, सिमिलरली सिंपैथेटिक जब पैरासिम्पैथेटिक होगा तो मस्कुलिनिक की जब स्टिमुलेशन होगी तो डिट्रूसर करेगा कॉन्ट्रैक्ट और स्फिंक्टर होगा रिलैक्स, दे ऑलवेज गो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये भी आपने है। सो जब भी पेशेंट ने पी करनी है तो आपका कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व होगा, पैरासिम्पैथेटिक। जब यूरिन विदहोल्ड करना है तो कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व होगा, एक्टिवेट होगा सिंपैथेटिक। ठीक है, और सिंपैथेटिक होगा तो डिट्रूसर मसल जो है, जब भी सिंपैथेटिक होगा डिट्रूसर मसल रिलैक्स करेगा, कैपेसिटी बढ़ाएगा, यूरिन होल्ड होगा, एट द सेम टाइम इंटरनल स्फिंक्टर स्टिमुलेट होगा और यूरिन को वहां पे होल्ड कर लेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो होल्ड हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब इट्स नॉट द सिंपल एज वी डिस्कस प्रीवियसली। ठीक है, सो उसके एट द सेम टाइम जब ब्लैडर एम्प्टी होता है तो सिंपैथेटिक, एक तो सैक्रल से डिट्रूसर ने अपना काम कर दिया, सेंसरी इम्पल्सेस भिजवाई और वहाँ से स्टिमुलेट करके आपको एक हाइपोगैस्ट्रिक नर्व को स्टिमुलेट कर दिया, जो कि इसने यहाँ पे कर दिया। लेकिन एट द सेम टाइम आपने पैरासिम्पैथेटिक को इनहिबिट भी करना होता है। ठीक है, सो जब भी एक सिस्टम इन्वॉल्व होगा दूसरे सिस्टम को ऑटोमेटिकली इनहिबिट करना होगा। सिमिलरली व्हेन वी गो टॉक अबाउट द फुल ब्लैडर, तो उसमें जब पैरासिम्पैथेटिक ने एक्टिवेट होना है तो सिंपैथेटिक ने इनहिबिट भी करना है। तो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है, दैट इज एज अ मॉलिक्यूलर लेवल। जब आपका ब्लैडर एम्प्टी है, जब सिंपैथेटिक सिस्टम डिट्रूसर मसल सिग्नल्स भेज रहा है और वो सैक्रल के थ्रू थोरेसिक लेवल पे जाके नर्व्स को स्टिमुलेट करके हाइपोगैस्ट्रिक को स्टिमुलेट कर रहा है और सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है, तो एट द सेम टाइम देयर आर द फ्यू नर्व्स जो कि आएंगी और वो जो है वो इनहिबिट भी करेंगी आपके पैरासिम्पैथेटिक को। और वो कहाँ से आती हैं, वो आपके हायर सेंटर से मैसेज आता है। आपके हायर सेंटर कहाँ पे हैं, पॉन्स हैं, ब्रेन में पड़ा हुआ है, वहाँ से मैसेज आता है और वो आके आपके सैक्रल रीजन में स्टिमुलेट करता है। इफ यू कैन सी दैट, अप्रिशिएट दिस, ब्लैक में आपकी है, ऑरेंज में जो है ये आपकी पेल्विक नर्व है और ग्रीन में आपकी पेडेंटल नर्व बड़ी हुई है। ठीक है ना, ये पेल्विक नर्व का काम है, ये जाके मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स को इनहिबिट करेगा और जो पेडेंटल नर्व है वो निकोटिनिक रिसेप्टर्स को इनहिबिट करेगी। ठीक है, इनहिबिट करेगी तो वो सेम काम करेंगे जैसे आपके सिंपैथेटिक कर है कि रिलैक्सेशन कॉज हो जाएगी, और सिमिलरली एट द सेम टाइम जो स्फिंक्टर है उसको फर्दर कॉन्ट्रैक्ट करा देंगे, एंड दिस इज हाउ द पर्सन इज गोइंग टू होल्ड द यूरिन इन द ब्लैडर।
ठीक है जी। और जब आपको पता है यूरिन की कैपेसिटी होती है अबाउट 250 350 ml तक पहुंच, फर्स्ट स्ट्रेचिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उसके ऊपर पेशेंट वाइड करने लग जाता है। कैपेसिटी अबाउट द 400 टू 500 ml तक होती है ब्लैडर की। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई मेरे लिए अगर इसको समराइज कर सके तो आई बी हैप्पी टू लिसन टू समवन। कोई कर सकता है? हेलो, ओके। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं फुल ब्लैडर के ऊपर। फुल ब्लैडर में क्या होता है? द सेम मैकेनिज्म है। ये ब्लैडर है, इसके मस्करेनिक रिसेप्टर्स हैं, ये इसके सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स हैं, ये अल्फा 1 है, और ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स है येलो में और ब्राउन में। ठीक है, अब जब ब्लैडर फुल हुआ होता है तो बहुत ज़्यादा पल्सेस जो है वो रैपिड फायरिंग शुरू हो जाती है। जब रैपिड फायरिंग बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है तो अगेन क्या होता है कि द मैसेज गोल टू द सैक्रल रीजन। तो अगर आप देखो, डिट्रूसर एवरी टाइम इज सेंडिंग द मैसेज टू द सैक्रल रीजन में वहाँ पे भिजवा रहा है। सैक्रल रीजन में जब चले जाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ से आपके असेंडिंग न्यूरॉन होते हैं जो कि थोरेसिक एरिया को बाईपास करते हैं। थोरेसिक एरिया को बाईपास करने के दे गो टू डायरेक्टली टू द हायर सेंटर इन द ब्रेन में और पॉन्स में, और मैच्योरेशन सेंटर को स्टिमुलेट करते हैं। मैच्योरेशन सेंटर जब स्टिमुलेट हो जाएगा तो ये क्या करता है? ये दो काम करेगा। इसने एट द सेम टाइम आपके पैरासिम्पैथेटिक को इनहिबिट करना है और पैरासिम्पैथेटिक को स्टिमुलेट करना है और सिंपैथेटिक को इनहिबिट करना है। ठीक है, जब आपका पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो डिट्रूसर की कॉन्ट्रैक्शन वो करेगा। लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि वो थोरेसिक को इनहिबिट कैसे कर रहा है थोरेसिक में। तो जब आपका ब्लैडर फुल होता है, बहुत रैपिड जो फायरिंग होती है ऑफ द एफरेट पेल्विक नर्व्स की वाया रैपिड फायरिंग टू द सैक्रल रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ से न्यूरॉन्स निकलते हैं, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स निकलते हैं जो कि बाईपास करते हैं थोरैकोलम्बर एरिया को एंड दे गो टू द हायर सेंटर इन द ब्रेन। द पॉन्स के अंदर जो मैच्योरेशन सेंटर पड़ा हुआ है वो मैसेज भेजता है दो तरह के। ठीक है, नंबर 1 टू इनहिबिट the sympathetic nerve supplies and stimulate the parasympathetic। तो उसको इनहिबिट करने के लिए थोरेसिक रीजन में न्यूरॉन्स आते हैं जो कि हाइपोगैस्ट्रिक नर्व को इनहिबिट करते हैं। जब वो इनहिबिट हो जाती है तो इट विल जो उसका जो रिलैक्सेशन का इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, डिट्रूसर की कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, एट द सेम टाइम जो स्फिंक्टर है वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसकी कॉन्ट्रैक्ट कर करके रखा हुआ है ना सिंपैथेटिक ने, तो दोनों के नेगेटिव हो जाएंगे, वो इनहिबिट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या होगा? जो इम्पॉर्टेंट है काम है वो है अब पैरासिम्पैथेटिक का, जब पेशेंट ने अवॉइड करना होता है। उसमें क्या होगा कि अगेन आपकी ये ग्रीन में और ऑरेंज में जो आपको नर्व्स नजर आ रही हैं, दीज आर पोडेंटल एंड पेल्विक नर्व। ठीक है, ये दोनों आपके दूसरे सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन आते हैं सैक्रल रीजन में, वो आपके पोडेंटल नर्व को और सैक्रल पेल्विक नर्व को स्टिमुलेट करते हैं। दे विल गोइंग टू स्टिमुलेट द पेल्विक नर्व जो है वो स्टिमुलेट करेगी मस्करेनिक रिसेप्टर को, यहाँ पे आपकी स्टिमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, एट द सेम टाइम पोडेंटल नर्व जाके जो है वो आपके निकोटिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर लगेगी, एक्सटर्नल स्फिंक्टर के ऊपर रिलैक्सेशन कॉज करेगी, स्फिंक्टर रिलैक्स होगा और पेशेंट वाइड करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, so this is how the physiology of the maturation cycle works. So when patient has to hold the urine, sympathetic system is the predominantly which is working, and when the bladder is full then parasympathetic is in action. ठीक है, ये आपने मेजर डिफरेंस याद रखना है। और जब हम यूरिन इनकॉन्टिनेंस इन डिटेल पढ़ते हैं, ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मेल और फीमेल्स में इक्वल इसकी क्या कहना चाहिए प्रेवलेंस है, बट हम क्योंकि स्पेसिफिकली ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में फीमेल सिस्टम को ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं तो विल इनकॉन्टिनेंस में हम ज़्यादा उसके ऊपर बात करेंगे। अब जब आपने ये रखना है कि देयर 4 डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स हैं जो फ्यूचर में हम ओवर एक्टिव ब्लैडर के लिए मेडिकेशंस देते हैं, वो भी हम पेशेंट्स को इन रिसेप्टर्स के ऊपर देते हैं। जो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है उसका मैकेनिज्म टोटली डिफरेंट है, लेकिन जब आप ये फिजियोलॉजी बहुत अच्छी तरह से समझ लोगे, आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का पता होगा एंड हाउ द सिस्टम इज वर्किंग, आई थिंक इज बिकम मच मच ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द इनकॉन्टिनेंस। ठीक है, सो अब हमने अपने बैकग्राउंड एक बना लिया, नाउ वी हैव टू एस्टैब्लिश्ड अपनी एक बेस बना लिया, नाउ विल डिस्कस द यूरिन इनकॉन्टिनेंस। सो इनकॉन्टिनेंस होता क्या है? एनी इनवॉलंटरी लीकेज ऑफ द यूरिन इन द वेरी सिंपल वर्ड्स। ठीक है ना, जो आपकी इंटरनेशनल जो यूरोलॉजी की इनकॉन्टिनेंस की सोसाइटी है दे एक्सप्लेन इट। ठीक है, या
अगर मोर स्पेसिफाई अगर हम कहें, जो इंटरनेशनल कॉन्टिनेंस सोसाइटी कहती है, द इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ द यूरिन विच इज ऑब्जेक्टिवली डिमॉन्स्ट्रेबल and affecting her social and creating a social and hygienic problem or affecting the quality of a life of a person. ठीक है. और अगर बहुत सिंपल वे में हम कहें तो the complaint of any involuntary leakage of the urine is known as urinary incontinence. इसको आगे हम डिफाइन कर लेते हैं. दो तरह की होती हैं सिम्टम्स जो उसके यूरिन इनकॉन्टिनेंस के. अगर आपके पास अगर पेशेंट आता है यूरिन इनकॉन्टिनेंस का, तो वो कौन से सिम्टम के साथ प्रेजेंट कर सकता है? जो पेशेंट है वो आपके पास प्रेजेंट करता है या तो स्टोरेज सिम्टम्स होते हैं या वॉइडिंग सिम्टम्स होते हैं. अगेन हमने उसको क्लासिफाई किया हुआ है. ठीक है, जिस तरह हमने एम्प्टी ब्लैडर और फ्लू ब्लैडर के मैकेनिज्म को डिफरेंशिएट किया था, सिमिलरली हमने उसके स्टोरेज सिम्टम्स को और उसकी वॉइडिंग सिम्टम्स को जो है वो डिफरेंशिएट किया हुआ है. तो यूरिन स्टोरेज सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं? ठीक है, दे कैन बी द फंड का निमोनिक आप इसके लिए यूज कर सकते हो. फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, अर्ज इनकॉन्टिनेंस, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस एंड नॉक्टर्नल इन्यूरेसिस, हेजिटेंसी, इनकम्प्लीट सेंस ऑफ सेंसेशन एम्प्टिंग, और आर से जो है वो रेजिड्यूल कितना पेशेंट को रह जाता है. सो ये आपका फंड हर का निमोनिक है. जब भी हम यूवी प्रोलैप्स की हिस्ट्री लेते हैं, लॉन्ग केस की आपके पेशेंट के ऊपर बात करते हो, तो उसमें हम ये निमोनिक यूज़ करते हैं टू यूरिन इनकॉन्टिनेंस के सारे कंपोनेंट्स को रूल आउट करने के लिए. ठीक है जी. और फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? दैट इज हाउ मैनी टाइम्स पर्सन इज द वेदर अ मेल और फीमेल इज गोइंग टू द यूज बाथरूम टू वाइड द यूरिन. ठीक है जी. अर्जेंसी कितनी है कि कितनी स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है टू यूरिनेट. अगर वही अर्ज इतनी ज़्यादा हो, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो, और उसके साथ इनकॉन्टिनेंस भी हो जाए, लीकेज भी हो जाए, तो दिस इज नोन एज अर्ज इनकॉन्टिनेंस. ओके. स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का क्या मतलब है? इनकॉन्टिनेंस इनवॉलंटरी लीकेज है. स्ट्रेस मैन वेन एवर देयर इज समथिंग स्ट्रेस, दैट इज अ पेशेंट कॉफ करे, स्नीजिंग करे, लाफिंग हो, एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो, ठीक है ना, उसकी वजह से अगर इनकॉन्टिनेंस हो जाए, तो दिस इज नोन एज स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, एंड दैट्स अ टोटली डिफरेंट एंटिटी, और उसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे. नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस का मतलब है, नॉक्टर्नल मीन रात को, एन्यूरेसिस हाउ मेनी टाइम यू यूरिनेट. सो रात के टाइम अगर पेशेंट को एक दफ़ा से ज़्यादा उठ के, और 70s के बाद अगर 2 दफ़ा से ज़्यादा उठ के यूरिन करना पड़ता है, तो इसको हम नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस कहते हैं. अगर किसी पेशेंट की फ्रीक्वेंसी डे टाइम 6 टाइम से ज़्यादा हो, तो ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कंसिडर की जाती है. ठीक है ना, डे टाइम के बात हम कर रहे हैं. इसके अलावा जो वॉइडिंग प्रॉब्लम है, अब अगर वॉइडिंग प्रॉब्लम को अगर आप गौर से पढ़ो, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं यूजुअली मेल्स में प्रीडोमिनेंट होते हैं, स्पेशली अगर ओल्ड एज में बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया हो जाए, तो उस पे पेशेंट्स में यूजुअली एक्सपीरियंस ये करते हैं. फीमेल्स जो प्रीडोमिनेंटली होती हैं, उनको स्टोरेज सिम्टम्स के साथ ज़्यादा आपको प्रेजेंट करती हैं. और अगर तो बहुत सवेयर यूवी प्रोलैप्स हो, तो उसमें उनको हेजिटेंसी या टर्मिनल ड्रिबलिंग वगैरह प्रॉब्लम हो सकती है. बट यूजुअली स्लो स्ट्रीम होना, स्प्लिटिंग स्प्रेन, इंटरमिटेंट स्ट्रीम होना, ये सारे जो हैं वो मेल्स के प्रीडोमिनेंटली होते हैं एंड डिवॉइडिंग रिलेटेड होते हैं. और ये मोस्ट कॉमन कॉज इन द मेल्स इज जो होता है वो बीपीएच होता है. ठीक है, ओके. इनको फर्दर अगर आप डिवाइड करें, तो अगेन अदर टर्मिनोलॉजीज आर यूज, दैट इज दे कैन बी द इरिटेटिव सिम्टम्स और ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स. ठीक है ना, बीपीएच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, सब कुछ सिस्टम ठीक है, आपका किडनीज का, यूरिन यूरेटर्स का, ब्लैडर का सिस्टम सारा, लेकिन कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जो कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के अंदर एक ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से पेशेंट अवॉइड नहीं कर पा रहा. तो इरिटेटिव सिम्टम्स में वो ही हैं जो हमारे फंडहर के स्टोरेज सिम्टम्स आ जाते हैं. और जो ऑब्स्ट्रक्टिव आ जाता है, उसके अंदर ये हेजिटेंसी, इंटरमिटेंसी, स्ट्रेनिंग, वीक स्ट्रीम, पोस्ट वाइडल ड्रिबलिंग एंड रिटेंशन ऑफ द यूरिन आ जाता है. अब कंसर्न क्या है हमारा? वाई वी आर सो मच वरिड अबाउट द यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस? ठीक है जी. सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम. ओके, एंड द गुड थिंग इज दिस कि it's a such a common problem which is affecting the quality of life of a person, but it's a treatable thing which is underdiagnosed and undertreated. ठीक है, so we have to consider our patient कि हम उनको बेहतर तरीके से ट्रीट कर सके और उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रेजेंट कर सकते हैं. ज़्यादातर आपके पास जो एज ग्रुप आता है, वो आपके पास ऑब्वियसली पोस्ट मीनोपॉजल आता है इसमें. ठीक है ना, until unless or provided otherwise, that is a pregnancy is one of the condition जिसमें पेशेंट को इनकॉन्टिनेंस हो सकती है. अदरवाइज मेजॉरिटी आपका पेशेंट जो है वो पोस्ट मीनोपॉजल होता है. सो
इन दैट एज ग्रुप दे हैव टू बीइंग अ मुस्लिम जो है उन्होंने नमाज पढ़नी होती है, बहुत रिलीजियस रखना होता है, देन उन्होंने सोशलाइज के लिए उनको ट्रैवल करने में प्रॉब्लम होती है, फिर वो किसी के घर नहीं जाते बिकॉज दे हैव टू गो टू द यूरिन, या उनको ये होता है कि यू नो आई हैव टू चेंज माई क्लोथ्स एवरी टाइम. तो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ द इनकॉन्टिनेंस जो कि किसी भी फीमेल्स की लाइफ के ऊपर होते हैं, जो कि उनकी सोशलाइजेशन को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को, हर चीज़ को लिमिटेड कर सकते हैं. और वो इसी वजह से कि मुझे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूरिन आता है या मेरा यूरिन निकल जाता है, वो किसी के घर नहीं जाते, मिलते जुलते नहीं है, एंड इट्स अ साइलेंट एपिडेमिक. ठीक है जी. फीमेल्स में ओवरऑल इंटरनेशनली अगर आप यूएस के स्टैट्स की बात करो तो $19 बिलियन जो है वो एक फीमेल्स के ऊपर जो है स्पेंड हो रहे हैं पर ईयर, जस्ट सिर्फ और सिर्फ इनकॉन्टिनेंस की वजह से. इट्स अ साइलेंट एपिडेमिक, बट द गुड थिंग कि ये बहुत कॉमन है, ट्रीटेबल कॉज है, और हम इसको अंडर डायग्नोज और अंडर ट्रीट करते हैं. इफ़ वी कम टू नो, अगर हम इसकी बहुत अच्छी डिटेल हिस्ट्री एग्जामिनेशन कर लें तो वी कैन मैक्सिमम प्रोवाइड द मैक्सिमम बेनिफिट टू द आवर पेशेंट्स और आवर कम्युनिटी. ओके, सो स्टैटिस्टिक्स क्योंकि इंटरनेशनल आपके यूरो गायनी के हैं, सो मे बी दे आर नॉट गोइंग टू कोरिलेट, लेकिन जो आपके ईबीएम में लिखे हुए हैं और ड्यूहर्ट्स में लिखे हैं, यू हैव टू फॉलो दैट. इफ यू आस्क मी कि फ्रॉम वेयर यू कैन स्टडी दिस चैप्टर, आई थिंक आई मस्ट से दैट इज द ईबीएम कवर्ड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट. कंप्लीट 2 चैप्टर्स है, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे लिखे हुए हैं. इवन दे इनकॉर्पोरेट द गाइडलाइन. आई डोंट थिंक सो दैट यू हैव टू रीड एनी अदर थिंग फ्रॉम दैट. ठीक है जी. आपका यूरोडायनामिक्स भी कवर है, आपकी डिटेल्स सारी, सर्जरीज भी कवर्ड है, एवरीथिंग इज कवर्ड, सो यू आर गुड टू गो विद दैट. और स्टैटिस्टिक्स के लिए भी आई थिंक यू मस्ट कंसल्ट द ईबीएम एंड दैट्स अ गोल्ड स्टैंडर्ड. कीप विद दैट योर टेक्स्ट बुक. ओके, सो कम्युनिटी में ओवरऑल मेल फीमेल्स में अगर आप देखो तो प्रेवलेंस ज़्यादा है, 30% फीमेल्स पे. ठीक है. 70% जो है ओल्डर मैन में होती है, और इनकी वजह से, इनकॉन्टिनेंस की वजह से, अप टू 50% फीमेल और फीमेल दोनों को एडमिशन हमें करना पड़ता है. ठीक है जी. अब नाउ आई विल टॉक अबाउट द प्रेवलेंस स्टैटिस्टिक्स अबाउट रेफरेंसेस योर ईबीएम कि हम इसको डिवाइड कर लेते हैं कि ओवरऑल कम्युनिटी एंड देन प्रेग्नेंट एंड प्रेग्नेंट स्टेट के अंदर पेशेंट को क्या क्या हो सकता है. ठीक है. सो अगर इफ़ आई लुक एट द प्रेग्नेंट फीमेल, तो जो प्रेवलेंस है इनकॉन्टिनेंस की वो मल्टीपेरिस में ज़्यादा है, 4% है. ठीक है. और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस ज़्यादा होती है. ठीक है. सबको रीज़न पता है कि नॉर्मल वेजिनल डिलीवरीज के बाद आपके जो लिवर टिरनाई है, पेल्विक फ्लोर की रिलैक्सेशन हो जाती है, वहाँ पे जो आपकी ब्लैडर के नेक है, यूरिथ्रा हाइपरमोबिलिटी हो जाती है, नेक डिसेंड कर जाती है. दीज आर द रीजंस. जो प्राइमरी पेशेंट्स हैं वो 2.7% हैं. ठीक है. ओवरऑल अगर हम बात करें तो कॉन्टिनेंस में, इनकॉन्टिनेंस में 50% जो है वो स्ट्रेस होता है. ठीक है. और ये प्लीज़ अपना माइक ऑफ कर दें. ठीक है. 11% जो है वो अर्ज है, और 36% जो है वो मिक्स्ड होता है. जो अगर हम बात करें रिस्क फैक्टर्स की, तो व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स हैं फीमेल. अगर आपने हिस्ट्री लेनी है, ओपीडी में आप बैठी हुई हैं और आपके पास कोई पेशेंट आ जाता है तो आपने हिस्ट्री लेनी है, तो आपके जहन में क्या क्या होना चाहिए रिस्क फैक्टर्स में. नंबर 1 एज. ठीक है. दूसरा आपके पास आ जाता है रेस. ठीक है जी. इफ़ यू एज वी आर इन पाकिस्तान, वी आर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो हमारे यहाँ रेस का इतना ज़्यादा नहीं है, बट इंटरनेशनली व्हेन यू गो टू द यूके, यूएस, देयर एथनिसिटी और द रेस मैटर्स ओवर देयर. द वाइट आर मोर प्रीडोमिनेंटली अफेक्टेड एज कम्पेयर टू द African Americans and the other populations. ठीक है. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रेगनेंसी एंड द चाइल्ड बर्थ. और सिमिलरली अगर आप में से किसी ने यूवी प्रोलैप्स की, अगेन मैं इसको कोरिलेट कर रही हूँ बार बार आप लोगों के साथ कि आपका लॉन्ग केस की बेसिस ही ये स्टडी, ये आपका इनकॉन्टिनेंस बनती है, उसमें आपने पेशेंट को डिटेल रूल आउट करना होता है. सो दीज आर ऑल द रिस्क फैक्टर यू हैव टू, जब व्हेन यू आर टेकिंग द हिस्ट्री फ्रॉम द पेशेंट, तो आपने रूल आउट करने होते हैं अपने रिस्क फैक्टर्स. ठीक है. कि पेशेंट की एज क्या है, प्रेगनेंसीज कितनी थी, नॉर्मल डिलीवरीज थी, उसकी वजह से कोई ट्रॉमा तो नहीं हुआ. ठीक है जी. मल्टीपल प्रेगनेंसी इटसेल्फ है, चाइल्ड बर्थ है, और मीनोपॉज है. तो अगर देखें तो फीमेल के अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड ही उसके तीनों हैं, एंड द फोर्थ इज द एज वन. ठीक है. तो ये 4 इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि फीमेल को प्री डिस्पोज करते हैं टू द इनकॉन्टिनेंस. अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, मैंने आपको कहा था कि प्रेगनेंसी के ऊपर हम बात करेंगे, कि प्रेगनेंसी में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है. फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही कुछ पेशेंट को स्टार्ट हो जाता है. फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में यूजुअली 60% होता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में 81% तक होता है. प्रीडोमिनेंटली सबके अंदर जो है वो 90% तक होता है. जो नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस हो सकता है वो 4% होता है. वाई वी नीड टू नो दिस स्टैटिस्टिक्स हैं. ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपके पास पेशेंट आए तो हर चीज़ को हम एबनॉर्मली ट्रीट ना करें. ठीक है.
हम उसको कॉमन थिंग्स फर्स्ट थिंक अबाउट द कॉमन थिंग्स, और आप पेशेंट को काउंसिल कर सको कि नो इट्स अ बिनाइन कंडीशन, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी है, ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है अगर आपको यूरिन आता है. ऑब्वियसली यू हैव टू evaluate on the other differential diagnoses as well, but you have to keep this in consideration that it could be the normal as well. ठीक है ना, everything should not be considered as a pathological. जो अर्ज और इनकॉन्टिनेंस होती है, अर्जेंसी अगर आप देखो प्रीडोमिनेटली 60% तक है, ठीक है, लेकिन अर्ज इनकॉन्टिनेंस ओनली 10% है, और इसमें जो कॉज होती है वो डिट्रूसर ओवर एक्टिविटी सेकेंडरी टू द प्रेगनेंसी रिलेटेड हार्मोन्स की वजह से हो सकती है. तो अगर हम प्रेगनेंसी को ओवरऑल देखें तो उसमें स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस जो है वो प्रेगनेंसी में ज़्यादा कॉमन है. और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, आपसे अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि, और अगर पेशेंट भी आता है कि डॉक्टर साहब आई हैव बीन डिलीवर्ड और डिलीवरी के बाद भी मुझे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो 12% ऑफ द पेशेंट जो हैं वो सिम्टोमेटिक रहते हैं डिलीवरी के बाद भी, एंड देन 3 मंथ्स के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं. सो अगर आपके पास डिलीवरी के बाद भी पेशेंट आती है और वो कहती है कि जी डॉक्टर साहब आई एम स्टिल फीलिंग कि मुझे स्नीजिंग करते हुए, कॉफ करते हुए प्रेशर है, या वॉशरूम जाते हुए जो है वो इनकॉन्टिनेंस हो जाती है, तो आपने उसका यूटीआई का वैल्यूएशन करने के बाद यू हैव टू काउंसिल योर पेशेंट. और वैसे भी इनकॉन्टिनेंस की फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन आपकी यूरिन आ रही होता है. तो 12%, कीप इन दैट स्टैटिस्टिक्स इन योर माइंड, दैट इज द 12% पेशेंट विल रिमेन सिम्टोमेटिक इवन आफ्टर द डिलीवरी ऑफ आफ्टर द प्रेगनेंसी और आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी. ओके, सो चाइल्ड बर्थ कैसे कंट्रीब्यूट करता है? चाइल्ड बर्थ हमें पता है दैट इज नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी के अंदर लिबेटर एंड आई योर बिग ह्यूज मसल, द पेल्विक फ्लोर का मसल है जो कि सपोर्ट कर रहा है. फर्स्ट प्राइमरी ग्रेविडा में ऑब्वियसली वी हैव टू गो द एपिजियोटमी इन द 90% ऑफ द केसेस है, ठीक है जी. एंड एवरी टाइम व्हेन द मदर इज गोइंग थ्रू द लेबर प्रोसेस, जो वहाँ पे जितनी आपकी पेल्विक नर्व्स होती हैं, पेडेंटल पेल्विक नर्व्स होती हैं, उनकी इंजरी होती रहती है, ठीक है. इट्स अ वेरी माइक्रो लेवल पे होती है लेकिन वो हील हो जाती है द नंबर ऑफ जितने, इसीलिए कहा जाता है जितनी नंबर ऑफ प्रेगनेंसी ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा रिस्क ऑफ द यूवी प्रोलैप्स एज वेल एज इनकॉन्टिनेंस बढ़ता चला जाएगा, एंड दैट इज़ अ रैशनल, ठीक है. सो देयर इज अ काइंड ऑफ द माइक्रो लेवल के ऊपर ट्रॉमेटिक इंजरीज जो है नर्व सप्लाई, पेल्विक नर्व से सप्लाई नर्व्स की होती रहती है, जिसकी वजह से वो मसल्स को इतना टॉट नहीं रख सकती कि वो आपके सपोर्टिव रह सकें, और वो लैक्स होने लग जाते हैं. और सिमिलरली पेशेंट जब मीनोपॉज में जाती है तो ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी उसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाती है, एंड उसका जो ओवरऑल जो आपको रिजल्ट्स नज़र आते हैं वो अबाउट 5 to 10 फोल्ड्स रिजल्ट इंक्रीज हो जाता है और पेशेंट को आपको नज़र आ जाता है. सो ओवरऑल रिस्क ऑफ इनकॉन्टिनेंस जो है वो 5 to 0.7 फोल्ड्स तक इंक्रीज हो जाता है विद द प्रीवियस वेजिनल डिलीवरी के साथ एज कम्पेयर टू सिजेरियन सेक्शन. और उसके में भी प्रीडोमिनेंटली अगर आप देखो तो आपके पास जो है वो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, उसके बाद मिक्स इनकॉन्टिनेंस की पेशेंट को सिम्टम्स हैं, ठीक है जी, कि उसके साथ जो है उसको फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी एंड नॉक्चूरिया तो हो ही रहा है, और साथ में उसको इनकॉन्टिनेंस भी हो रही है. उसके बाद आ जाते हैं हम द वेरी इंपॉर्टेंट कॉज के ऊपर, दैट इज मीनोपॉज. हमें पता है मीनोपॉज के अंदर जो है ऑब्वियसली इज अ physiological process है. As the female age they go for there's a reduced production of the estrogen, reproductive hormones. The estrogen is the main hormone for the female's life, जो कि उसके सारे healthy system को activate करने के लिए important होता है. But the few females they suffers a lot if there is a पहले ही अगर उनको बहुत ज़्यादा deficiency और ऊपर से menopause की वजह से बहुत severe हो जाती है तो they can suffer from the very serious side effects from the cardiovascular strokes and CNS and all other related problems, ठीक है. अब उसके साथ साथ क्या होता है कि अब ईस्ट्रोजन मैंने बताया कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ये आपकी पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है जी. फीमेल में जो ही वो कम होने लग जाता है तो उससे रिलेटेड जितने एनाबॉलिक, इट्स एनाबॉलिक हार्मोन, तो जितने एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है वो कम होने लग जाती हैं. सिमिलरली जो ये इसने ईस्ट्रोजन की वजह से आपका जो मसल्स होते हैं उनके अंदर जो कोलेजन होता है उसको ये एक्टिवेट रखते हैं और हेल्दी रखते हैं, जिसकी वजह से एक टाइटनेस रहती है, वो सब कुछ ख़त्म होने लगते हैं, तो मोर लैक्सिटी आने लग जाती है, ठीक है. सो 70% ऑफ द पोस्ट मीनोपॉजल मोमेंट में जो कॉज होता है वो होता है, और सिवियर एजेंसी 20% को होती है. 50% जो है वो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के साथ प्रेजेंट करती है प्रीडोमिनेंटली. तो ओवरऑल अगर हम यूरिन इनकॉन्टिनेंस के पेशेंट्स को देखें तो 70% जो होते हैं पोस्ट मीनोपॉजल होती हैं, ठीक है. उसमें 50% आपकी स्ट्रेस के साथ होंगी, और उसके बाद है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ़ ईयर ज़्यादा हो जाते हैं, एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी ज़्यादा होती जाती है, वैसे वैसे आपकी पेशेंट की प्रेजेंटेशन जो है वो होती जाएगी. So this is our table which is showing you again
कि पेशेंट की एज से लेके अगर हम देखें तो 70-79 से और 80 के बीच में, ठीक है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन 50 के ऊपर पेशेंट की जो है वो परसेंटेज अबाउट 40% तक होती है, उसके बाद डिक्लाइन होनी आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो जाती है। तो ये आपकी प्रेवलेंस है, रेफरेंस आपका है, यूरोगाइनी का जर्नल है ये आपका, जिसमें ये शोइंग दैट इज ये दिस इज़ द एज ग्रुप, और ये है कि कितने परसेंट पेशेंट्स को हुआ। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो 50-59 में पेशेंट को सबसे ज़्यादा है, वो 38% तक है, ठीक है ना, 38% तक आपके पेशेंट को हुआ है। और उसके बाद जैसे जैसे एज ज़्यादा हो रही है, दोबारा 80s की बाद फिर ये दोबारा से राइजिंग ट्रेंड आने लग गया। सो ओवरऑल फीमेल्स के अंदर 49% स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है, 29% आपका मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस होता है, और 22 अर्ज इनकॉन्टिनेंस होता है, ठीक है जी। सो इसका मतलब है ओवर एक्टिव ब्लैडर इतने ज़्यादा प्रेवलेंस नहीं होती जितनी सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम देखने को पड़ती है या जो हम इनकाउंटर करते हैं पेशेंट को ओपीडी में, वो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की। डिटेल हिस्ट्री कैन गाइड यू टू द पॉइंट कि अब आपने इस पेशेंट को ट्रीट करना है, कैसे करना है, ठीक है। दिस एन अदर स्लाइड जो कि एक आपको क्विक जो पिक्टोरियल डेमोन्स्ट्रेशन करी है कि स्ट्रेस में क्या होगा कि वेन एवर देर इज़ अ स्ट्रेस तो देर इज़ अ टोन कम हुई है, तो जब भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर यूरिथ्रल प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा तो पेशेंट को जो है वो इनकॉन्टिनेंस हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें रीज़न होती है कि इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, वो सेकेंडरी टू आपकी पेशेंट किसी को क्रॉनिक एस्थमा हो, क्रॉनिक स्मोकर जो यूजुअली हमारे यहाँ नहीं होते, या स्नीजिंग की वजह से या कॉन्स्टिपेशन की वजह से, जब भी इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा तो पेशेंट को प्रॉब्लम होगा, लाफिंग से, कफिंग से, स्नीजिंग से, ठीक है। अर्ज इनकॉन्टिनेंस में अब ये जो अर्ज की ओवर एक्टिव ब्लैडर में, इसमें डिट्रूसर जो भी हमने फिजियोलॉजी में पढ़ा था, डिट्रूसर मसल इज अ मेन कल्प्रेट, वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, ठीक है जी। वो छोटे छोटे से नर्व स्टिमुलाइज को भी जो है वो स्टिमुलेट करने लगता है, जिसलिए इसको हम कहते हैं डिट्रूसर ओवर एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। ओवर एक्टिव ब्लैडर को या ओएबी को हम ये भी कहते हैं कि डिट्रूसर ओवर एक्टिविटी हो रही है, और उसको हमने डिफ्रेंशिएट करना होता है फिर यूरोडायनामिक्स की बेसिस के ऊपर। अब मिक्स में क्या होता है, इसमें जो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में सबको 3 तरह के सिम्टम्स आते हैं। पेशेंट फ्रीक्वेंसी के साथ प्रेजेंट करेगा, ठीक है जी, और वो नॉक्चूरिया के साथ प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है ना, जो होता है। और सम टाइम देयर इज अर्जेंसी, लेकिन जो अर्ज इनकॉन्टिनेंस का पेशेंट होता है वो अर्जेंसी के साथ प्रेजेंट करता है, अर्ज इनकॉन्टिनेंस के साथ प्रेजेंट करता है। अगर ये दोनों सिम्टम आप मिला दो फंड हर के या सिर्फ फन के, ठीक है ना, तो उसको हम कह देते हैं मिक्स सिम्टम्स हैं। यानी आपको अब हिस्ट्री से पता ही नहीं चल रहा कि यार ये पेशेंट की हिस्ट्री स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की तरफ जा रही है या अर्ज इनकॉन्टिनेंस की तरफ जा रही है, कि इनको सिर्फ अर्जेंसी बहुत ज़्यादा शदीद होती है, प्रीडोमिनेंटली होती है, या स्ट्रेस की वजह से इनकी इनकॉन्टिनेंस होती है। सो वो ओवरफ्लो क्या होता है, ओवरफ्लो में क्या होता है कि अब डिट्रूसर की नर्व सप्लाई समहाउ सेकेंडरी टू द वेरी गुड एग्जांपल इज अ प्रोलॉन्ग्ड डायबिटीज़, उसकी वजह से वो नर्व सप्लाई इतनी ज़्यादा वो उसकी डैमेज हो चुकी है या अनरिस्पॉन्सिव हो चुकी है कि ब्लैडर डिट्रूसर मतलब रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा। हमने अभी बिगनिंग में पढ़ा था कि जब एम्प्टी ब्लैडर होता है तो डिट्रूसर स्लो नर्व इम्प्लस सैक्रल को रीजन को भेजता है, और जब वो भरने लग जाता है तो वो फास्ट फायरिंग रैपिड फायरिंग करता है टू द सैक्रल रीजन, ताकि वो डिट्रूसर को एक्टिवेट करे, कॉन्ट्रैक्ट करे और यूरिन बाहर निकले। अब यहाँ पे डिट्रूसर का प्रॉब्लम होता है कि डिट्रूसर रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, बट डिट्रूसर रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा तो क्या होता है कि वो फिलिंग होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, क्योंकि उससे सेंसिटिविटी खराब हो गई है, और सेकेंडरी टू द नर्व डिजेनरेशन, एंड द वेरी गुड एग्जांपल इज अ डायबिटिक न्यूरोपैथी, ठीक है। तो उसमें फिर ओवर फ्लो इनकॉन्टिनेंस या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो, दैट्स अनदर एग्जांपल कि जिसमें पेशेंट को हो सकता है, ठीक है जी। अब तो चले ये सारी टाइप्स होगी, हमने कहा कि वो डिफरेंट टाइप की ये इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, इनकी क्या है, आगे इनको ट्रीट कैसे करना है, ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट ये है कि अब हमने इसको कर लिया, डायग्नोसिस कर लिया, अब हमने ट्रीट कैसे करना है, ठीक है, वन बाय वन। अब यहाँ पे क्योंकि मैं बहुत डिटेल में आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगी, आई गो थ्रू स्पेसिफिकली गॉर्डर के स्ट्रेस में और ओवर एक्टिव ब्लैडर में। अब आपने इन्वेस्टिगेट कैसे करना है पेशेंट को, ठीक है। स्ट्रेस को मैं आपको ब्रीफली बता चुकी हूँ कि जब भी इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा होगा, यूरिन लॉस होगा, ठीक है ना, दिस इज़ अनदर पैथोफिजियोलॉजी डिटेल कि बेसिकली ये लिगामेंट्स का प्रॉब्लम होता है। मैंने आपको बताया कि चाइल्ड बर्थ की वजह से जब
मल्टीपल टाइम जो है वो डिलीवरीज होती हैं, वहाँ पे नर्व इंजरी होने लग जाती है। तो दीज आर द सपोर्टिव लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 स्पोर्ट्स जो हमने यूवी लैब्स में पढ़ी हुई हैं, ठीक है ना। जो वो स्पोर्ट्स डैमेज हो जाती है, और स्पेशली दिस इज द प्यूबोसर्वाइकल लिगामेंट है और प्यूबोयूरेथ्रल लिगामेंट, दीज विच आर द स्पोर्ट्स ऑफ द नेक ऑफ द ब्लैडर के लिए जो बहुत अच्छी स्पोर्ट है, जब ये खराब होने लग जाते हैं तो फिर हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम आने लग जाता है। ठीक है जी। दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं स्ट्रेस में, या तो इंट्रिंसिक स्फिंक्टर डेफिशिएंसी होती है, यूरिथ्रल हाइपरमोबिलिटी होती है। ये हमेशा आपने दो बातें याद रखनी है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जब मल्टीपल आपका जब ये लिवेटर ना इतना सपोर्टिव नहीं रहता, ये जो पेल्विक फ्लोर मसला इन्होंने आपको दिखाया हुआ है, तो ये जो ब्लैडर की नेक है नीचे डिसेंड कर जाती है, और जब भी प्रेशर होता है ये हाइपर मोबाइल हो जाती है, एंड दिस इज गोइंग बैक एंड फोर्थ अप एंड डाउन, जिसकी वजह से उसकी हाइपर मोबिलिटी की वजह से जब स्फिंक्टर का इतना अच्छा होल्ड नहीं रहता तो यूरिन लीक होने लग जाता है, ठीक है। सो दो इंपॉर्टेंट स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में है कि यूरिथ्रल हाइपरमोबिलिटी एंड स्फिंक्टर वीकनेस। ओके, बाकी अब उसके बाद हमें बाकी डिटेल्स कर चुके हैं कि अब इनकॉन्टिनेंस में आपने पेशेंट से क्वेश्चंस क्या क्या पूछने होते हैं। आपने पूछना होता है कि आप कितनी दफ़ा आप ब्लैडर डायरी जब हम पेशेंट को लिखने के लिए देते हैं तो उसको कहते हैं कि आप उसके साथ ये लिखें कि टाइम लिखें, डेट लिखें, और उसके बाद ये बताएं कि आपको कितनी दफ़ा आपने कितना पिया था, कितनी दफ़ा यूरिन किया था, ठीक है जी। आपने 3 डेज़ की ब्लड डायरी देनी होती है, फिर पेशेंट को वापस बुलाना होता है, ठीक है। इट्स वेरी हार्ड टू डू दैट, लेकिन आपने उन्हें ड्रॉ करके बताना होता है, और उसमें आप एक क्वेश्चन भी उनको लिख के देंगे कि आपको कितनी दफ़ा लीक हुआ, कितनी दफ़ा आपकी इनकॉन्टिनेंस हुई, आपने कितना ज़्यादा लीक किया, यानी आपका ट्राउज़र पूरा वेट हो गया था, पूरा फ्लो वेट हो गया था, क्या हो गया था, और इसकी वजह से इफेक्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या होता है, आप उसका स्कोर करते हो। वो आपके ईवीएम में चार्ट पड़े हुए, यू कैन गो दैट, और वो है। इसके अलावा सारी आपने प्रलैप्स की हिस्ट्री, इनकॉन्टिनेंस की, यूटीआईज की, पेनफुल ब्लैडर की, सर्जरीज की, ड्रग थेरेपी आपने करनी होती है, ठीक है जी। अब दिस इज आर अदर निमोनिक जो हम ओवरऑल इनकॉन्टिनेंस के लिए यूज़ करते हैं जब आप एक्स्ट्रा इनकॉन्टिनेंस को कर रहे होते हैं, कि वेदर पेशेंट इज हैविंग सम डिलीरियम और द ड्रग्स। डिलीरियम का क्या मतलब होता है कि पेशेंट इज नॉट इन हिज सेंसेस, ओके। रिस्ट्रिक्टिव मोबिलिटी हुई है, इन्फेक्शन है, इम्पैक्शन तो नहीं है, ठीक है। उसमें कॉन्स्टिपेशन आ जाते हैं, उसमें यूटीएस आ जाते हैं, और पॉलीयूरिया यानी सेकेंडरी टू डायबिटीज तो नहीं है। तो दिस इज अनदर निमोनिक विच यू कैन यूज़ फॉर द टू रूल आउट के जहन में कॉजेज लाने के लिए ड्रिप पे। वो तो हमने निमोनिक किया था उसके सिम्टम्स के लिए, और ये निमोनिक होता है आपके इसके लिए। इसके अलावा ड्रग और डाइट का, इन्फेक्शन का, एट्रोफिक यूथराइटिस का, साइकोलॉजिकल डिप्रेशन, ठीक है ना। तो ये डायपर्स का लफ्ज़ होता है और वो ट्रिप का लफ्ज़ होता है। दिस इज अदर वे टू मेमोराइज। ओके, असेसमेंट कैसे करनी है पेशेंट की। अभी हमने डिटेल बात की, हिस्ट्री करनी है और डिटेल एग्जामिनेशन करना है। हिस्ट्री के सारे पॉइंट्स मैं आपको साथ साथ बताती गई थी कि इसमें यूजुअली आपने इस पेशेंट की डिटेल हिस्ट्री लेनी होती है। सम टाइम पेशेंट यूरिप्रलैप्स के साथ प्रेजेंट करता है, द मोस्ट ऑफ द टाइम ओनली द इनकॉन्टिनेंस बी द प्रॉब्लम। तो इनकॉन्टिनेंस से आपने फंड हर का निमोनिक यूज़ करते हुए सारे सिम्टम्स को रूल आउट करना है। फिर उसके बाद आपने उसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में पूछना है कि आपकी मल्टीपल डिलीवरीज तो नहीं थी, होम डिलीवरीज तो नहीं थी, फिर कोई डिफ़िकल्ट डिलीवरी तो नहीं थी, आपकी कोई सर्जरी तो नहीं हुई प्रीवियसली, कोई ट्रॉमा, कोई एक्सीडेंट, ठीक है जी। आपको कोई डायबिटीज़ तो नहीं है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है जिसके लिए की वजह से आपको इनकॉन्टिनेंस हो रही है, कोई यूरिन का इन्फेक्शन तो नहीं है। सो यू हैव टू कम्प्लीटली एवेल्यूएट योर पेशेंट, और उसके बाद फिर आप एग्जामिनेशन के ऊपर, एग्जामिनेशन ऑब्वियसली विल गो फॉर द जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन एंड ऑब्वियसली pelvic examination, I'll focus on the two, ठीक है ना। तो इसमें यूरोलॉजिकल और द गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा आप, मैंने अब तक हिस्ट्री ले ली है, ठीक है। हिस्ट्री आपने ये ले ली, तो फर्स्ट लाइन उसके ऊपर मैंने अब देखना है कि मेरी हिस्ट्री ज़्यादा डायरेक्ट किस तरफ मुझे कर रही है, देन मेरी इन्वेस्टिगेशन उस तरफ होगी। द फर्स्ट एवर इन्वेस्टिगेशन व्हेन एवर द पेशेंट यू विल इनकाउंटर सच अ पेशेंट, यू विल गो फॉर द यूरिन RE, सिंपल इज दैट, ठीक है। आपने पेशेंट को वैल्यूएट कर लिया, आपने यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन कर लेना है। यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन आपको डिसाइड करेगा, आपने यूटीआईज को रूल आउट कर लिया। नाउ यू हैव टू कैटेगराइज योर पेशेंट ऑन द बेसिस ऑफ द हिस्ट्री, ठीक है। इसका क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि वेदर आपने उसे स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की कैटेगरी में रख रहे हो या आप उसको ओवर एक्टिव ब्लैडर की कैटेगरी में रख रहे हो, ठीक है ना। जो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का पेशेंट होता है उसमें डायरेक्टली फिर आप कीगल एक्सरसाइजेस के लिए जाते हो, 8 to 12 वीक्स के ऊपर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे ऊपर बात करते हो। जब ओवर एक्टिव ब्लैडर का पेशेंट आएगा तो उसको हम क्या करेंगे कि हम उसे ब्लड डायरी के ऊपर देंगे, फिर उसका ब्लड स्ट्रेस टेस्ट करेंगे, पैट टेस्ट करेंगे, बॉनी टेस्ट करेंगे। वी हैव टू वैल्यूएट बिफोर गो टू द यूरोडायनामिक्स, ठीक है। वो ज़रा आपकी हो जाती है। अगर आपको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का लग रहा है तो हम QT टिप टेस्ट जो है फॉर द ब्लैडर नेक हाइपर मोबिलिटी करके देख लेते हैं।
सो आपने हिस्ट्री कर ली, डिटेल एग्जामिनेशन कर लिया, आपने अपने टेस्ट करके देख लिए, तो आपने सिंपल टेस्ट हम ऑफर करते हैं और कम्प्लेक्स टेस्ट ऑफर करते हैं। सिंपल टेस्ट में हम क्या करते हैं, पेशेंट को हम यूरिन एनालिसिस करते हैं, यूरिन कल्चर है, ब्लैडर डायरी, ठीक है जी, और पोस्ट वाइडल के लिए हम एक अल्ट्रासाउंड करके देख लेते हैं। उसमें हमारा ये पर्पस भी होता है कि हम किडनीज को, यूरेटर को, स्ट्रक्चर्स को भी रूल आउट कर ले, बाकी जो है एनाटॉमिकल कॉजेज को, और इसके साथ साथ आपने आरएफटीज और बीएसआर भी कर लो, ठीक है। कम्प्लेक्स में आपने क्या क्या करना है, यू विल गो फॉर द यूरोफ्लोमेट्री और सिस्टोमेट्री हमसे ज़्यादा कॉमन करते हैं, ठीक है जी, और ऑब्वियसली फॉर दैट यू हैव टू रेफर टू द पेशेंट टू द जो है वो यूरोलॉजिस्ट को करेंगे, हम खुद से ट्रीट नहीं करेंगे। जी साहा, डू यू हैव अ क्वेश्चन? साहा, यू रेज योर हैंड और इट्स बाय सम मिस्टेक। आवाज आ रही है सब लोगों को मेरी? ओके Yes, ma'am. ओके साहर, इस वाज बाय मिस्टेक, ओके ठीक है जी, यहाँ तक सबको क्लियर ठीक है हो जी, गया? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? हेलो, Yes, ma'am. ओके ठीक है जी। ओके ब्लैडर डायरी ठीक है में जी, अब हम करेंगे, डायरी में व्हाई आई एम लिसनिंग टू माय सेल्फ नाउ। अच्छा जी, ओके अब हम करते हैं ब्लैडर डायरी के ऊपर बात। तो ब्लैडर डायरी अपने पेशेंट को, अभी मैंने आपको बताया था, आपने उसे बताना है फूड फ्लूइड इनटेक कब लिया, उसका टाइम, टाइप, अमाउंट, क्या चाय पी, कॉफ़ी पी, पानी पिया, जूस पिया, क्या पिया उन्होंने, कितने बजे पिया, कितना ज़्यादा पिया, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है यूरिन आउटपुट, कितने बजे। यस, अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन साहर। सेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन साहर। शुड आई अनम्यूट यू? एक सेकेंड। और जस्ट गिव मी अ मोमेंट सो आई कैन फिनिश इट, और फिर हम कर लेते हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, Right, वी आर and अबाउट टू फिनिश, ठीक है। you. ओके एक उसके सेकंड। बाद है कि हमने पेशेंट को, फिर आपने देख लिया कि यूरिन लीकेज कब कब हुआ, टाइम, अमाउंट, प्रेसिपिटेटिंग इवेंट्स क्या थे, कफ स्नीजिंग की वजह से तो नहीं हुआ, वो एक्सरसाइज करने गई थी उसके बाद तो नहीं हुआ, एसोसिएटेड सिम्टम अर्जेंसी पेन वगैरह तो नहीं था, या उसने उसके लिए उसे पैड तो नहीं यूज़ करना पड़ा, अगर करना पड़ा तो कितना करना पड़े, ठीक है। ये आप उसकी ब्लड डायरी उसको बता देंगे। उसके बाद आपने, ठीक है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की फर्दर आपने डिटेल कर ली, आई विल नॉट गो इनटू दैट। मैं सिर्फ आपके पास इसके ऊपर बात करूंगी कि आपने यूरिन इनकॉन्टिनेंस के पेशेंट के बिहेवियर थेरेपीज क्या क्या करानी होती हैं। एक तो सेल्फ मैनेजमेंट करानी है, टाइम शेड्यूल करानी है, और पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस करवानी है। ओके ठीक है जी। और उसके बाद फिर हम फर्दर इसको आगे से करेंगे कि सेल्फ मैनेजमेंट में फ्लूइड इनटेक का, जैसे हमने बताया, हम अभी बात करें ओवर एक्टिव ब्लैडर के ऊपर, तो आपने उसे फ्लूइड दोनों में आपको फ्लूइड इनटेक करो, अपना कंट्रोल करो, रात को 2 घंटे, 8 बजे तक, अगर 10 बजे आप सोते हो तो 8 बजे तक आप अपना जो भी पीना है, आपने खाना है, उस टाइम तक बंद कर दो, सो दैट कि बहुत लेट नाइट आपने खाना नहीं है या फ्लूइड इनटेक नहीं करना, क्योंकि वो भी रात को आपको एन्यूरेसिस करेगा। सो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन एंड द कंट्रोल ऑफ द फ्लूइड इज द फर्स्ट लाइन, ठीक है जी। ये सारी बातें आपने पेशेंट को समझानी है कि वो कॉफ़ी ना पिए, चाय ना पिए, और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ना पिए, सोडास वगैरह ना ले, कोई जूस, आर्टिफिशियल स्वीटनेस वगैरह लेने की रात को ज़रूरत नहीं है। स्केड्यूल करे वाइडिंग को, कैसे करेगा जी? वो अपनी हर, कैसे आप उसे बताएंगे पेशेंट को कि आपने अपना दिन में कितनी दफ़ा यूरिन करना है, ठीक है जी। ये नहीं है कि समटाइम जो ओवर एक्टिव ब्लैडर के पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत स्ट्रांग डिज़ायर होती है, वो हर आधे घंटे के बाद जा रहे होते हैं, तो आप पेशेंट को ये समझाओगे कि देखिए जब भी आपको अर्जेंसी होती है, आपको वो ज़रूरत महसूस होती है, यू हैव टू गो टू द बाथरूम, तो आप ज़रा थोड़ा विद होल्ड करें, अपने आप को खुद से कंट्रोल करें, ठीक है, टाइट कर लें, और फिर देखें वो टाइम इंक्रीज़ करते जाएँ, 5 मिनट एवरी डे इंक्रीज़ करते जाएँ, और इंटरवल को इंक्रीज़ करके अप टू 30 मिनट से लेके ईच वीक से लेके 4 आवर्स तक आप कंटिन्यू बढ़ाते चले जाएँ। दिस इज़ आर द वे यू ट्रेन योर ब्लैडर, ठीक है। अगेन डिट्रूसर मसल की आप ट्रेनिंग कर रहे हो, जब आप पेशेंट को कहते हो कि यूरिन होल्ड करो, होल्ड करने से क्या होता है कि सिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स बहुत अच्छा सप्लाई करते हैं, वो जब बहुत सप्लाई करते हैं तो स्फिंक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो करेगा। एक मिसकंसेप्शन है कि कीगल एक्सरसाइज ओवर एक्टिव ब्लैडर में देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, दे आर इक्वली इफेक्टिव, यू कैन गिव, लेकिन क्योंकि आपकी जो गाइडलाइन है उसने स्पेसिफिकली कीगल एक्सरसाइज को उसमें मेंशन किया हुआ है, जो यूरिन इनकॉन्टिनेंस की नाइस गाइडलाइन है स्पेसिफिकली मेंशन उसको किया हुआ है स्ट्रेस के साथ, तो हम वो करते हैं, लेकिन आप ओवर एक्टिव ब्लैडर के पेशेंट को भी
भी कीगल एक्सरसाइजेज एडवाइस कर सकते हो। कीगल एक्सरसाइज आपने कैसे करनी होती है कि पेशेंट को आपने 3 टाइम्स अ डे पेशेंट को एडवाइस करनी होती है 10 to 15 मिनट्स के लिए, ठीक है जी। और वो अबाउट 12 वीक्स तक, 8 to 12 वीक्स तक पेशेंट एक्सरसाइज करनी होती है। उसमें आप पेशेंट को क्या कहते हैं कि आप कुर्सी पे बैठ के अपने आप के पाँव ज़मीन के ऊपर रख के आपने अपना सांस रोकना है और प्रेशर लगाना है। आपने अपना रोकना है जैसे आप अपने स्टूल करते हुए कॉन्स्टिपेशन के दौरान, सॉरी, अपने आप को विद होल्ड करते हैं, जोर जोर लगाना है इनसाइड, ठीक है जी। कि आपने जैसे यूरिन को बाहर निकलने नहीं देना, ठीक है। टाइट करना है अपने सारे पेल्विक एरिया को, पेल्विक मस्कुलेटर को, ठीक है। तो वो 3 टाइम्स अ डे आप TDS में 10 to 15 टाइम्स के लिए एक दफ़ा में डॉग को पूछते हैं कितनी दफ़ा करना है, 15 to 20 टाइम्स करना है, 10 to 15 टाइम्स से स्टार्ट करें और हर 5-5 इंक्रीज करती जाएं तो कीगल साइजेस विल हेल्प द पेशेंट टू इम्प्रूव, ठीक है जी। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम पेशेंट की आइसोलेशन करें, पेल्विक मसल्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं, ठीक है। आपने उनको कहना है कि कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा पेल्विक एरिया में करें, एब्डोमिनल बटक और थाइस को करने की ज़रूरत नहीं है। मॉडरेट रेपिटेशन होनी चाहिए और 10 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करें और रिपीट इन द ग्रुप ऑफ 10 to 30, ठीक है। TDS में 3 टाइम्स अ डे करें, हर दफ़ा 10 to 15 टाइम्स करें और कितनी देर के लिए करना है, 10 सेकेंड्स के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये आपको हैं कि व्हाट काइंड ऑफ द डिफरेंट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज यू कैन एडवाइस योर पेशेंट, ठीक है ना। और ये वाली सबसे ईजीएस्ट होती हैं, ब्रिज बनवाना और असिस्टेड हील के साथ ड्रॉप करवाना सबसे ईजीएस्ट होता है, पेशेंट कैन इजीली परफॉर्म दैट ऑन लाइंग ऑन हर बैक, ठीक है जी। तो बेसिकली पर्पस आप क्या कर रहे हो व्हेन यू आस्किंग फॉर द कीगल एक्सरसाइजेज, यू आर आस्किंग योर पेशेंट टू पेल्विक फ्लो को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम मसल स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं। जितना ज़्यादा रेपिटेशन होगा तो मसल स्टिमुलेट होगी, कैल्शियम रिलीज होगी, कॉन्ट्रैक्शंस बनेंगी। अगेन वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इफ़ यू रिपीटिंग दिस थिंग ओवर द 2 months टाइम तो वो स्ट्रेंथनिंग इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा वेजिनल वेट्स के बारे में भी है, लेकिन इट्स नॉट दैट प्रैक्टिकल है। इसमें हम करते क्या हैं कि सिंगल वेट जो है वो वजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है, हेल्ड इन प्लेस बाय टाइटनिंग द मसल अराउंड, और पेशेंट को फिर आप जो है 15 मिनट्स के लिए है, लेकिन आपको ये बुला के करवाना पड़ता है, ठीक है जी। उसके लिए आप नहीं कर सकते, या फिर सिखाना पड़ता है कि दे हैव टू इंसर्ट इनसाइड। उसके बाद आपके पास आ जाता है बायो फीडबैक थेरेपी, ठीक है जी। बायो फीडबैक थेरेपी के अंदर जैसे टेंस आपने देखी होंगी कि टेंस की इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं, दिस आर काइंड ऑफ अ चाइनीज़ टेक्निक जो कि फिजियोथेरेपिस्ट बहुत यूज़ करते हैं। तो उसमें हम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू अटैच करके तो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। जब मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं सिमिलरली तो ये बायो फीडबैक के थ्रू आप करें, मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है वो दोबारा करंट देता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो दोबारा करंट देता है। तो वो जो हम कीगल एक्सरसाइजेस पेशेंट परफॉर्म कर रहा था तो ये उसका एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर आ जाता है। सो ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हमारे पास ओवर एक्टिव ब्लैडर में आ जाती हैं, द फर्स्ट लाइन्स दे आर मेडिकेशंस, ठीक है ना। अगर हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में बात करें, और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में एक बड़ी कंफ्यूजन होती है कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में हम मेडिसिन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। देयर आर ओनली फ्यू मेडिसिन है। स्ट्रेस बेसिकली स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, दो मेजर प्रॉब्लम है, यूरिथ्रल हाइपरमोबिलिटी हुई है, दूसरा स्फिंक्टर की डेफिशिएंसी हुई है। तो ऑब्वियसली उसमें मेडिसिन इतना काम नहीं करेंगी। जो ओवर एक्टिव ब्लैडर है वहाँ पे यूट्रोसल मसल के ऊपर आपको देखा है 2 रिसेप्टर्स लगे हुए, एक मस्करेनिक लगा हुआ है, निकोटेनिक लगा हुआ है। तो वो जो है अगर आप उनके ऊपर मेडिकेशंस दोगे जो हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है, एंटी मस्करेनिक, एंटी सिंपैथेटिक, ठीक है जी, बीटा एगोनिस्ट, अल्फा एगोनिस्ट, तो वो काम कर सकती हैं, लेकिन इसमें हमारे पास लिमिटेड होती है। लेकिन देयर आर फ्यू ड्रग्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन द स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, दे कैन बी duloxetine, ठीक है। Duloxetine according to the guideline and EBMs we can given only to those patients who are qualified with the surgery but they were waiting for the surgery and the time is not available and they are waiting for the surgery. That's the only condition where you can prescribe the duloxetine, otherwise इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है जी। इसके अलावा द एस्ट्रोजन कैन बी गिवन बिकॉज द पोस्ट मेनोपॉजल में द रीज़न अगेन वही है कि टाइटनिंग हो जाएगी, बेहतर हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट्स आर नॉट दैट प्रॉमिसिंग एज इन अदर। जो ओवरऑल अगर आप बात करो सर्जिकल ऑप्शंस की, तो सर्जरी इज़ द एंड रिजॉर्ट इन द स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, और इनमें 2 इंपॉर्टेंट हैं आपके पास, TVTs और TOTs, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है। इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन हम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ द बायोफीड मैकेनिज्म है। इसमें पेल्विक मसल को आप कॉन्ट्रैक्ट कराओगे, यूरिनरी स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हैं और ब्लैडर मसल की कॉन्ट्रैक्शंस को आप इनहिबिट कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा एंटी इनकॉन्टिनेंस प्रोडक्ट्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की भी हम बात करें, यानी आप पेशेंट को वेजिनल पैसरीज भी एडवाइस कर सकते हो, पैड्स दे सकते हो, और उसको कह सकते हो कि यू कैन यूज़ द लाइनर्स, पेंटी लाइनर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी।
पेजरीज कैसे काम करेंगी कि वुमेन्स जिनको इनकॉन्टिनेंस हो रही है प्रोलैप्स की सूरत में, ठीक है जी, तो वो उनको हेल्प कर लेंगी, या जो जिनकी हम सर्जरी नहीं कर सकते या उनके पास कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है जी। ये हमें हेल्प करती है अगर जो आपका यूरिथ्रा है, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि यूरिथ्रा हाइपरमोबिलिटी की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो रीपोजिशन करता है ब्लैडर को और यूरिथ्रा को, और वो उसको आपको हेल्प आउट कर देगा। दिस आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द पेजरीज। सेम है कि सेकेंड या फर्स्ट डिग्री रिव्यू प्लास का पेशेंट अगर इनकॉन्टिनेंट के साथ आता है तो हम उसमें पेजरीज का रोल है, यंग पेशेंट है तो वी कैन प्रिस्क्राइब देम पेजरीज, ठीक है जी। इसके अलावा यूरिथ्रल ओक्लूसिव डिवाइसेस हैं, ये इतनी ज़्यादा इंटरनेशनल यूज़ होती हैं, हमारे यहाँ इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको कहीं लिखा हुआ भी नहीं मिलेगा, तो मे बी दिस इज़ फॉर काइंड ऑफ ओवर हो जाएगा इसका टॉपिक को कवर करने के लिए। और इसके अलावा जो है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कैथेटर्स आ जाते हैं, जो कि फिर एंड रिजॉर्ट ट्रीटमेंट होती है ओवर एक्टिव ब्लैडर के लिए। सर्जरी में अभी मैंने आपको बताया दो जो आपका यूरिन इनकॉन्टिनेंस, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का जो मेजर होती है, ट्रीटमेंट होती है स्ट्रेस के अंदर, वो आपके स्लिंग प्रोसीजर्स आ जाते हैं, ब्लैडर नेक सस्पेंशन आ जाती है, पेरी यूरिथ्रल इंजेक्शंस आ जाते हैं, ठीक है ना। ये 3 ट्रीटमेंट जो हैं हम करंटली कर भी रहे हैं, पेशेंट्स के ऊपर अवेलेबल भी होती है, ठीक है। अब ऑब्वियसली जो भी आपने सर्जिकल ट्रीटमेंट देनी है, यू हैव टू वे बिटवीन द रिस्क एंड बेनिफिट्स, कि पेशेंट को बेनिफिट ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू यू रिस्किंग समथिंग, ठीक है जी, उसे मजीद वर्सन ना कर दो, तो इसलिए फिर आपने करना होता है। सिंक प्रोसीजर्स में हम हाइपर मोबिलिटी ऑफ जो ब्लैडर नेक क्योंकि नीचे डिसेंड कर गई हुई है, उसको हमने एलिवेट करना होता है। जो ही हम एलिवेट करते हैं तो उससे 50% ऑफ द पेशेंट के जो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का मसला है वो ठीक हो जाता है, स्फिंक्टर का क्लोजर प्रेशर ठीक हो जाता है, और पेशेंट की काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा मिड यूरिथ्रल टेप्स जो हैं, मिट्स के नाम से अगर देखें तो ये टीवीटीज, टीओटीज और डिफरेंट आपको ये नज़र आ रही हैं। दीज आर द डिफरेंट टेप्स जो हम यूटिलाइज करते हैं और इनके थ्रू पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, ठीक है जी। और अभी दोबारा इसके ऊपर भी एक प्रॉपर आपकी जो है वो गाइडलाइंस अवेलेबल हैं। सो दिस इज़ अ टेंशन फ्री वेजिनल टाइप टीवीटी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्टेनलेस स्टील की एक रिजिड कैथेटर होता है, ये इसका इंट्रोड्यूसर होता है स्टेनलेस स्टील का, ठीक है जी। और ये दोनों प्री फॉर्म्ड नॉब के साथ ये जो है मैं पोली में जो मैं पोरस जो मैश होती है इसके साथ प्री फॉर्म्ड, ये आप देखो तो ये हॉर्न्स की तरह के अटैच्ड होते हैं, दे देमसेल्व्स आर शार्प एंडेड होते हैं, ये पेनिट्रेट कर देते हैं और हम इसको अपने जो डिफाइंड लैंडमार्क्स होते हैं उससे निकाल देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, दिस इज़ द काइंड ऑफ अ प्रोसीजर, जस्ट आई क्विकली गो थ्रू दैट। आप पेशेंट को कैथेटराइज करते हो, कैथेटराइज करने के बाद यू होल्ड इट, ठीक है जी, डिसेक्ट करते हो, अप्रोच करते हो, ये जो हमने टीवीटी का वो नॉब टाइप सी शेप दिखाई थी उसको इंसर्ट करोगे और आप उसको अपनी फिंगर के साथ गाइड करते हुए आपने ऊपर से निकाल देना होता है, ये जस्ट क्लियर टू द प्यूबिक सिम्फिसिस, ठीक है ना, यहाँ पे बहुत क्लोज टू द प्यूबिक सिम्फिसिस, यानी यू इंसर्टेड, दूसरे हाथ के साथ आप ये गाइड कर रहे थे, सी यू पुट योर फिंगर इंसर्टेड अलोंग द वे, और उसके बाद फिर आपने क्या किया, यू जस्ट टेक इट आउट, ठीक है। और उसके बाद सिमिलरली ऑन द लेफ्ट साइड के ऊपर करोगे, दोनों को यहाँ पे कट कर देते हैं, ये उसी स्किन इंसिजन जो हमने प्यूबिक सिम्फिसिस के करीब लगाया हुआ होता है उसी के थ्रू यहाँ से कट कर देंगे, और पेशेंट जो है वो खुद हील हो जाता है, कोई स्टिचिंग कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। और ये यूरोलॉजिस्ट बहुत कॉमनली कर रहे होते हैं, जितनी भी हमारे इंपॉर्टेंट यूरो के डिपार्टमेंट हैं इन द कोलैबोरेशन विद द यूरो गायनेकोलॉजी, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर, यू कैन डन ईजिली कैन बी डन ऑन द पेशेंट। तो अब देखो एनाटमी में क्या होता है कि यहाँ से आपने इंसर्ट करना शुरू किया था, अब आप यहाँ यूरिथ्रोवेसाइकल जंक्शन होता है अबाउट 1 सेंटीमीटर भी होता है यूरिथ्रा, तो यहाँ से आप ब्लड ऑफ नेक को एलिवेट करते हो और इसको जब ऊपर उठाते हो तो आपके पेशेंट के सिम्टम्स हैं, तो बेसिकली वी आर जस्ट गिविंग अ सपोर्टिव थेरेपी, और ये ब्लड की नेक को एलिवेट कर देगा और जो है ये असेंड हो जाएगा और पेशेंट के सिम्टम्स हो जाएंगे। टीओटी इज़ अ सिमिलर वन, ठीक है जी, लेकिन जो आपने जाना होता है अप्रोच आपकी जो ग्रेटर शियाटिक फोरामेंस होती हैं उसके थ्रू होती है, और ये अगर आप देखो इसका मॉडल तो यू हैव टू गो थ्रू दैट। उसमें हम यहाँ से अप्रोच कर रहे थे यूरिथ्रा के बिलो और फिर हम प्यूबिक सिम्फिसिस में निकल रहे थे, यहाँ पे अगर आप देखो तो यू आर गोइंग थ्रू दिस जो है ये शियाटिक फोरामेंस, ठीक है जी। सो दिस आर द डिटेल ऑफ द सर्जरी, आई एम नॉट गोइंग थ्रू दैट, बट आप इसको अपने ईवीएम से डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ये सारे इसके स्टेप्स हैं। ओके, सो आगे हम बात करते हैं टीओटीज़ की तरफ, ओवर एक्टिव ब्लैडर की मैनेजमेंट के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि इसका ज़्यादातर ये है, इसके अलावा बर्च कॉल्पो सस्पेंशन आपकी आ जाएगी, ठीक है ना।
और इसके अलावा आर्टिफिशियल रिजर्वायर्स है। अब मैं बात करूंगी बेसिकली नाइस रिकमेंडेशंस के ऊपर, ठीक है ना। दिस इज गोइंग टू बी हमारा फाइनल समराइज करने के लिए अपनी डिस्कशन। सो नाइस रिकमेंड आपको क्या करता है कि आपने अपने पेशेंट्स के लिए, जो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का पेशेंट है, उसको आपने पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग करानी है एटलीस्ट 3 मंथ्स के बाद एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ द ट्रीटमेंट, जिसको आपने स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस डायग्नोज कर लिया, ठीक है जी। स्ट्रेस या मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस के साथ अगर वो पेशेंट ठीक रहता है, आपने सबसे पहले यूरिनरी करवाना है, यूरिनरी करवाने के बाद आपने डायग्नोज क्लिनिकल किया हुआ है, तो आपने पेशेंट को स्ट्रेस किया है, तो आप पीएफएमटी की तरफ जाओगे 3 मंथ्स के लिए। फिर उसके बाद आपने क्या करना है पेशेंट को, फिर आपका पेशेंट ठीक नहीं हुआ तो फिर यू हैव टू गो फॉर द यूरोडायनामिक्स ट्रायल के बाद हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में यूरोडायनामिक्स पे जाते हैं। यूरोडायनामिक्स करवाने के बाद फिर जो आपके पास फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होती है वो होता है कि हम पेशेंट को मिड यूरिथ्रल टेप यानी टीवीटी से रिकमेंड कर सकते हैं, और बर्श कॉल्पो सस्पेंशन भी की जा सकती है which can be given to the patients, ठीक है जी। और अगर उससे भी नहीं होता तो देयर इज एन अदर के इंट्राम्यूरल बल्किंग एजेंट हैं। इसमें हम इंजेक्शंस जो हैं वो यूरिथ्रा के बीच में लगा देते हैं, जिससे वो क्या कहना चाहिए, दे जस्ट पॉप अप हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, तो जस्ट बिकम नैरो हो जाते हैं और यूरिथ्रल हाइपरमोबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरा इंपॉर्टेंट आपके पास जो टॉपिक है वो है ओवर एक्टिव ब्लैडर। विल क्विकली गो थ्रू दिस एज वेल। तो इनकॉन्टिनेंस में अब इसमें मैंने आपको बताया द प्रॉब्लम इज अ डिट्रूसर मसल, ठीक है। डिट्रूसर मसल की ओवर एक्टिविटी हो रही है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। सो अर्जेंसी विद और विदाउट अर्ज इनकॉन्टिनेंस को हम कैटेगराइज करते हैं एज ओवर एक्टिव ब्लैडर। दिस इज अ डिफरेंस, ठीक है। और अगर ये सिम्टम्स फ्रीक्वेंसी और नॉक्चूरिया के साथ भी पेशेंट यूजली प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो मेन प्रीडोमिनेंट सिम्टम होती है वो अर्ज और विद और विदाउट अर्ज इनकॉन्टिनेंस हो सकती है। तो अर्जेंसी इज अ प्रीडोमिनेंट फीचर ऑफ द ओवर एक्टिव ब्लैडर। टाइप्स इसकी क्या है, टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है। टाइप 1 में क्या होता है कि ओवर एक्टिव ब्लैडर के पेशेंट को कंप्लेंट्स होती हैं, ठीक है, लेकिन डिट्रूसर मसल्स की इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस जो होती हैं ना वो नहीं होती। आप जब यूरोडायनामिक्स कराते हो तो आपको कोई उसकी डिट्रूसर की ओवर एक्टिविटी नहीं मिलती, कॉन्ट्रैक्शंस नहीं मिलती। टाइप 2 में क्या होती है कि कॉन्ट्रैक्शंस डिट्रूसर्स की होती हैं, वो उसको कहते हैं डिट्रूसर ओवर एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है। टाइप 3 भी होती हैं जिसके अंदर इनवॉलेंट्री डिट्रूसर की कॉन्ट्रैक्शंस भी हो रही हैं, पेशेंट इज अवेयर ऑफ दोज कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है जी। और जिसकी वजह से उसका जो स्विंक्टर है शी इज वो उसको मोमेंटरली जो है प्रिवेंट कर देता है, अपने इनकॉन्टिनेंस को कर सकता है। लेकिन इसका डिफरेंस क्या होता है कि वो डिट्रूसर कॉन्ट्रैक्शंस को इनहिबिट नहीं कर सकता, और वंस अगर उसका स्विंक्टर वो रोक रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है, फटीग हो जाता है, तो पेशेंट को इनकॉन्टिनेंस हो जाती है। सो ये टाइप 3 का फर्क है। टाइप 4 में क्या होता है कि डिट्रूसर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, यानी बाकी 3 टाइप्स में आप देखो कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं, सिर्फ टाइप 1 थी जिसके अंदर डिट्रूसर की कॉन्ट्रैक्शन यूरोडायनामिक्स के ऊपर विजिबल नहीं है। बट पेशेंट जो है ना तो उनको वॉलंटरली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है स्फिंक्टर को, ठीक है जी, ना वो उसको इनहिबिट कर रहा है, और वो सिंपली इनवॉलंटरी लीक किए जा रहा है, ठीक है। जब भी उसका कॉन्ट्रैक्शन का स्पेल आता है तो वो आ जाएगा। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द डिट्रूसर ओवर एक्टिविटी जो है, ये 4 हाइपोथेसिस हैं। या तो ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, या तो नर्व डैमेज हुई है डिट्रूसर की, ठीक है जी, या यूरिथ्रल जो है रिफ्लेक्स है वो आपका बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है कि जब इंट्रा यूरिथ्रल प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए फिर उसके बाद लीकेज होना चाहिए, वो ख़त्म हो गया है। या देयर इज़ 2 हाइपोथेसिस हैं कि मायोजेनिक मसल के लेवल के ऊपर जो उसका सेलुलर लेवल के ऊपर जो है वो देयर इज़ अ प्रॉब्लम, ठीक है जी, मायोजेनिक हाइपोथेसिस में। और जो यूरोथीलियल एफरेंट हाइपोथेसिस है उसमें भी यही है कि जो यूरोथीलियम ऑफ द यूरिथ्रा है यानी एपिथीलियम है, उसको जो एफरेंट नर्व सप्लाई आ रही है उसका प्रॉब्लम है। सो दीज आर द 5 डिफरेंट हाइपोथेसिस जो कि आपके ईवीएम में बहुत डिटेल लिखी है। इफ यू रियली वांट टू गो थ्रू तो यू कैन गो थ्रू, ठीक है जी। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं कि ऐसा पेशेंट किसको ओवर एक्टिव ब्लैडर हो सकता है जी, जिसके बचपन से चाइल्डहुड बेड वेटिंग हो रही हो, पेशेंट ओबीस हो, स्मोकर हो, प्रीवियस हिस्टेक्टोमी हो चुकी है, ठीक है, या प्रीवियस कोई इनकॉन्टिनेंस सर्जरी हो चुकी है। बिहेवियर थेरेपी इनका भी वही जैसे हमने स्ट्रेस को किया था इसको भी करेंगे, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज देंगे, होम प्रैक्टिस देंगे, अपने ब्लड डायरी देनी है, वाइडिंग स्केड्यूल करना है, अर्ज स्ट्रेटजीज है, फ्रीज एंड स्क्वीज जो मैं आपको बता रही थी कि आपने पेशेंट को कहना है कि फ्रीज करो और स्क्वीज करो, ठीक है जी। टिकिकल एक्सरसाइज में बायो फीडबैक मैकेनिज्म करेंगे। इन पेशेंट्स में यस आफ्टर द इन्वेस्टिगेशंस के बाद जो हमारे पास होती है वो ऑप्शन होती है कि वी कैन गो फॉर
द फर्स्ट लाइन यूरोडायनामिक्स। These are the patients. आपने ब्लैडर डायरी का बताया, आपने कीकल एक्सिस का बताया, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का बताया, पेशेंट आपके पास आ गई कि डॉक्टर साहब मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नाउ दीज आर द कैंडिडेट्स जिसमें हम यूरोडायनामिक अर्लियर करते हैं, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में पहले हम ट्रायल देते हैं, ट्रायल के बाद फिर हम इनका करते हैं। अच्छा, अब दो इसके ऊपर आपको गाइडलाइन कहती है कि आप अपने पेशेंट को अगर डायग्नोज कर लिया ओवर एक्टिव ब्लैडर में और आपको लग रहा है कि सिम्टम्स आर माइल्ड, तो गो फॉर द मेडिकल थेरेपी फर्स्ट। ठीक है, मेडिकेशंस के ऊपर बात करते हैं। तो आपको वो अर्ज अनकॉन्टिनेंस में जो फर्स्ट लाइन होती है उसमें वहाँ पे एक्सरसाइजेज हैं, यहाँ पे फर्स्ट लाइन मेडिकेशंस आ जाती हैं। तो फर्स्ट लाइन जो हम दे सकते हैं ओटीडी का निमोनिक आपने हमेशा याद रखना है, ऑक्सीबिटोनिन इज फर्स्ट लाइन, टॉल्टेरोडीन इज सेकंड लाइन और डेरिफेनासिन वगैरह थर्ड लाइन हो जाती हैं। ठीक है, तो ओटीडी का आपने निमोनिक याद रखना है कि ये आपकी फर्स्ट लाइन है। लेकिन क्योंकि ऑक्सीबिटोनिन एंटीमस्करेनिक होते हैं, इनके साथ एंटीमस्करेनिक साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, पेशेंट को ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है जी, और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं। और अगर ऑलरेडी हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं तो उनके अंदर फर्दर प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो ओल्ड एज में फिर इनके साइड इफेक्ट की वजह से विल गो फॉर द सेकेंड लाइन। और सेकेंड लाइन में भी फिर आपने देखना होता है कि पेशेंट की एज क्या है, वेदर द ड्रग इज़ क्रॉसिंग द ब्लड ब्रेन बैरियर, वो ऑलरेडी कोमोबिडिटी अल्जाइमर के साथ, हाइपरटेंशन के साथ, एनी कोमोबिडिटीज़ के साथ, डायबिटीज़ के साथ नहीं है, और वो उसके लाइफ स्टाइल को ड्रग साइड इफेक्ट की वजह से तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा, तो देन विल गो फॉर द थर्ड लाइन। ठीक है जी, एंड देन देयर इज़ अ सिलेक्टिव, हमारे पास एसोसिएशन होती है कि कौन सी ड्रग हमने नॉक्चूरिया के लिए देनी है, कौन सी ड्रग्स हमने देनी है। द वेरी फेमस एंड द न्यू ड्रग दीज डेज मीराबिग्रेन है। ठीक है जी, बीटा 3 एगोनिस्ट है, ये अल्फा बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करती है। ठीक है जी, बीटा 3 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है और इसको बहुत ज़्यादा फेवर किया जाता है, इससे कंबाइन इफेक्ट होता है, तो ये आजकल वेरी फेमस ड्रग है। इसके अलावा अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं डिट्रूसर ओवर एक्टिविटी की, ओवर एक्टिव ब्लैडर की, तो द थिंग इज़ अ बोटॉक्स के इंजेक्शन आप पेशेंट को लगा सकते हो। सिमिलरली वैसे डर्मेटोलॉजिस्ट बोटॉक्स इंजेक्शन यूज़ करते हैं, सिमिलर द सेम बोटॉक्स जो है। फिर हम यूरिथ्रा सिस्टोस्कोपी, ये आपको सिस्टोस्कोपी दिखाई हुई है, सिस्टोस्कोपी के थ्रू आप अंदर इंसर्ट करोगे और आप जाके वहाँ पे सर्टन एरियाज़ के ऊपर उसके प्रॉपर अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन आप वहाँ पे बोटॉक्स के इंजेक्शन लगा देते हो। द पर्पज इज दैट कि डिट्रूसर बहुत हाइपर एक्टिव हुआ हुआ है, उसको स्लो डाउन करना है ताकि वो बिला वजह का जो कॉन्ट्रैक्ट करके इनकॉन्टिनेंस कर रहा है वो ना करे। ठीक है जी, लेकिन आप पहले स्लो डोज से 100 का इंटरनेशनल यूनिट से मिलीग्राम आई थिंक वो है उससे स्टार्ट करते हो और उसके बाद फर्क करते हो। दिस इज़ द पॉइंट हाउ यू इसको पेशेंट को लगाते हो, एंड ऑब्वियसली यू नीड द रेपिटेशन। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, आपने मेडिकेशन का ट्रायल दे दिया, आपने मेडिकेशंस के बाद आपने बोटॉक्स का ट्रायल दे दिया, यू आर ऑलरेडी डन द यूरोडायनामिक्स। ठीक है जी, एंड यू हैव डिसाइडेड कि जी अब पेशेंट का मेन मसला क्या है, क्योंकि हम ऑलरेडी डिसाइड करके हम ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ पे जाते हैं इसमें। तो फिर आप उसके बाद आपके पास जो थर्ड लाइन मेजर ट्रीटमेंट आ जाती है वो न्यूरोमॉड्यूलेशन है, क्योंकि हमने बात की कि जो ओवर एक्टिव ब्लैडर उसमें सारा नर्व का प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, डिट्रूसर की जो नर्व सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से तो न्यूरो मॉड्यूलेशन की जा जाती है। पोस्टीरियर टिबियल नर्व स्टिमुलेशन सुनने में बहुत अजीब सा लगता है कि टिबियल नर्व स्टिमुलेशन से कैसे आप ब्लैडर कंट्रोल कर सकते हो, बट इफ़ यू जस्ट रीड दिस डाउन तो उसमें यह है कि टिबियल नर्व की जो डायरेक्ट टू द फेमरल, फेमरल फिर आपको आगे बैकली जाके कनेक्ट करती है टू द पेडेंडल, और पेडेंडल की जो सब सप्लाई है वो होती है ब्लैडर की। सो दिस इज़ वाई दे हाउ दे वी कंट्रोल, नॉन इन्वेसिव टेक्निक है, तो हम बाहर से पोस्टीरियर टिबियल नर्व को स्टिमुलेट करके तो वी कैन कंट्रोल द ब्लैडर। ठीक है, सेक्रेल मॉड्यूलेशन थोड़ा एडवांस होता है, यू हैव टू गो एंड सर्ट जस्ट लाइक अ पेस मेकर, जैसे आप सीवीएस के पेशेंट्स में, हार्ट पेशेंट में सर्ट करते हो, इसी तरह का पेस मेकर होता है, सैक्रल रीजन में आप लगा देते हो और उससे फिर उसको नर्व सप्लाईज की जो है एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर स्टिमुलेशन होती रहती है, एंड दिस इज नोन एज सैक्रल मॉड्यूलेशन। दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द पोस्टीरियर टिबियल नर्व स्टिमुलेशन। पीटीएनएस करते हैं, ये आपसे अक्सर क्वेश्चन आता है, ओल्ड एज है, पेशेंट बिलिंग फॉर सर्जरी नहीं है, ओवर एक्टिव ब्लैडर है, व्हाट इज अ नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट यू कैन बी गिवन टू द पेशेंट, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है ना, आप पेशेंट को एडवाइस कर सकते हो, टीच कर सकते हो। सिमिलरली इट सीम्स टू बी लाइक टेंस की तरह का प्रोसीजर, टेंस की तरह होता है, शी कैन टेक एट होम और के अंदर डे केयर प्रोसीजर के ऊपर लगवा सकती है। दिस इज अ सेकंड नर्व मॉड्यूलेशन, ठीक है ना, जिसमें मैंने आपको कहा था इस पेस मेकर है जिसकी इंसर्ट कर दी जाती है सिमिलरली टू द सैक्रल रीजन जो कि आगे सप्लाई कर रही है, एंड पेस मेकर की तरह ओपन आपको कट लगा के फिर पेशेंट को इंसर्ट करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, जो लास्ट रिजॉर्ट होती है ओवर एक्टिव ब्लैडर में, अनफॉर्चुनेटली दिस इज द ऑगमेंटेशन, सिस्टोप्लास्टी और डिवर्जन कर सकते हो आप। ठीक है ना, सिस्टोप्लास्टी में अब हम क्या करेंगे कि पेशेंट को आप
जस्ट ऑगमेंटेशन उसकी सिस्टोप्लास्टी में कि हम उसकी ब्लैडर की कुछ पोर्शन में आइलियम को इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। आप सर्जरी करके तो उसकी सिस्टोप्लास्टी कर दी जाती है। डाइवर्जन में क्या होता है कि वी हैव टू डाइवर्ट द यूरेथ्रा टू द, आप आइलियम के साथ कर सकते हो, जीआई सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हो ताकि पेशेंट का ड्रेनिंग सिस्टम ही चेंज हो जाए। इसके अलावा द पेशेंट्स हु हैव ऑप्शन फॉर द हु आर एजुकेटेड इनफ और यू कैन हैंडल द सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन और ऑल अदर मोडालिटीज, तो उनके लिए किए जा सकते हैं, ठीक है। So that was the overall overview of your urinary incontinence. I try my, because it's a very huge topic, I try my maximum कि मैं आपको बहुत short time में एक simplified way में समझा सकूं। So आपका ये टेक होम मैसेज यही है कि जो आप पेशेंट का सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक इज अ मेन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। पेशेंट को सिंपैथेटिक सिस्टम यूरिन होल्ड करने में हेल्प करता है, अवॉइड करने में पैरासिम्पैथेटिक काम करता है। इनकॉन्टिनेंस की जो बेसिस है, ड्रग्स की बेसिस है, वो इसी सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक के ऊपर बेस्ड होती हैं। ओवर एक्टिव ब्लैडर में मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट मेडिकल होती है। हम मेडिसिन का ट्रायल देते हैं, मेडिसिन का ट्रायल पे पेशेंट ठीक नहीं होता तो फिर हम जो है पेशेंट को यूरोडायनामिक्स से उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेट करके ट्रायल उस पर देखते हैं। जो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है वो बिनाइन है, उसकी ट्रीटमेंट ईजी है, ठीक है। उसमें हमने पेशेंट को पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइजेस के लिए एडवाइस करना है, फिर उसके बाद हमने उसकी सर्जरी डेफिनेट ट्रीटमेंट होती है। पर्च टीवीटी टीओटीज आर द फॉर द स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है। और ओवर एक्टिव ब्लैडर के लिए फर्स्ट लाइन जो है आपकी ऑक्सीब्यूटेनिन आ जाती है, टॉल्टेराडीन, डेरिफेनासिन, टीमेप्रामीन आ जाती है। नॉक्चर्न के लिए आपके पास फिर दूसरी ड्रग्स आ जाती है, ठीक है ना, एमिट्रिप्टोलिन्स वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। मिराबिग्रीन इज अ न्यूली ड्रग है, B3 एगोनिस्ट है, न्यूली है, ये एक्ट करती है। एंड दिस इज ऑल द समरी अबाउट द नाइस गाइडलाइन, और आई गेस आपको इससे ज़्यादा नहीं पता होना चाहिए, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन एंड आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको ज़्यादा से अच्छा समझा सकूँ। इतना द हाउस इज ओपन फॉर द क्वेश्चंस, काइंडली रेज योर हैंड्स, सो वन बाय वन आई स्टार्टेड विल गिव यू आंसर, ठीक है जी। चलें, let's get started. So who is going to the first one? Sahar asked me the question. So let's stop share and let's get started. तो आप मुझे बताएं। हेलो डॉक्टर सुमैरा, आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आ रही है जी, मैम, मैं ये पूछे। पूछना चाह रही हूँ कि अगर पेशेंट जो है ना हिस्ट्री में आपको बता देती है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के सिम्टम्स है, उसने कहा है कि मुझे ब्लैडर डायरी का मुझे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि आउटडोर में हम उसको एडवाइस करते हैं ना कि ये बना के इस तरह से आना है। तो अगर आ जाता है तो फिर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में एग्जामिनर से हम ब्लैडर डायरी मांगेंगे जब पेशेंट ने हमें बता दिया कि मुझे नहीं पता इसके बारे में? ओके, अब देखो, आपको हिस्ट्री से, अगर आप पेशेंट की हिस्ट्री ले रहे हो, आपको बहुत अच्छा आइडिया हो चुका होता है, आपने हिस्ट्री एग्जामिनेशन कर लिया, आपकी हिस्ट्री जा किस तरफ रही है। अगर तो यूवी प्रोलैप्स का हिस्ट्री है और आपको लगता है कि आपको इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगा, ठीक है ना, कि मैं अगर पेशेंट से ब्लैडर डायरी मांगूँ या इनकॉन्टिनेंस इतनी ज़्यादा है तो मांगने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पेशेंट की प्रीडोमिनेंटली सिस्टोसील आपको नज़र आ गई है, या आपको पेशेंट को लग रहा है कि इनकॉन्टिनेंस की सिम्टम्स बहुत प्रीडोमिनेंट हैं, दैट वाज द कॉज कि वो पेशेंट हॉस्पिटल आई थी, तो फिर आप मांग सकते हो, उसमें हर्ज नहीं है। लेकिन अगर पेशेंट कहती है मुझे पता ही नहीं था डॉक्टर साहब, मुझे तो किसी ने दी नहीं है, फिर क्यों मांगोगे? पेशेंट ही जब कह रही है, नलिफाई कर रही है, तो फिर तो मांगने की कोई तुक नहीं बनती, ठीक है ना, क्योंकि फिर वो आप खामखा कहोगे कि वो है, वो सुन रहे होंगे उस टाइम कि आपने पेशेंट किसी ने आपको दिया था, बताने के लिए दिया था, ठीक है जी। फिर आप जब अपनी मैनेजमेंट पे कहोगे, वहाँ पे ये आप पॉइंट इन्हेंस कर सकते हो कि जी इस पेशेंट को अगर यूवी प्रोलैप्स का वोकेशन नहीं है और इनकॉन्टिनेंस का है, तो हाँ, इस पेशेंट को मैं जो है वो डायरी के लिए एडवाइस करना, आइडियली जो है फर्स्ट टाइम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ ब्लैडर डायरी के लिए करना चाहिए था, ठीक है जी। अगर आप अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन आप मांगते हो ना, तो उस टाइम एग्जामिनर को लगता है कि यू आर वेस्टिंग द टाइम। ऑब्वियसली 1 घंटा है आपके पास इतना टाइम ही नहीं है, उनके पास 10-10 मिनट है, तो अगर हम उसके ऊपर टाइम वेस्ट कर देते हैं तो इसका मतलब है यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, उसमें नहीं है। तो फोकस रहना तो है। अगर पेशेंट तो पॉइंट प्रोलैप्स मांगना का है। आता है जी, हाँ, अगर प्रोलैप्स का पेशेंट है और साथ में उसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, तो फिर उसमें और सिस्टोसील भी एविडेंट है उसकी, तो फिर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के लिए इन्वेस्टिगेशंस क्या मांगेंगे पेशेंट सिंपल एग्जामिनर से? यूरिन कल्चर, 2 चीजें आपकी मेन है, ठीक है जी। उसके बाद फिर आप कहोगे कि पेशेंट को जो है इतनी ज्यादा सिस्टोसील है और सिस्टोसील इज द कॉज,
फिर तो आपके पास एविडेंस चीज आ गया ना, चीज सामने पड़ी हुई है, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर वो उसका प्रोलैप्स इतना एविडेंट है तो उसकी वजह से उसको मैनुअल रिडक्शन करनी पड़ती है यूरिन पास के। तो आपकी जो फंड हर के जो ये 5-6 बातें हैं ना, यही आपको बता देती हैं कि आपको इतनी डिटेल। हाँ, ये ओपीडी का पेशेंट आता, अगर वो फिर आपको खुद ही मॉडिफाई कर लेती है कि अच्छा आपके पास ओपीडी में आया है तो फिर क्या करोगी, एग्जामिनर को भी पता होता है ना। तो अगर सिस्टोसील है, यूवी प्रोलैप्स का पेशेंट है और इनकॉन्टिनेंस है, तो फिर भी आप नहीं मांगोगे। आपको सामने नजर आ रही है, इनकॉन्टिनेंस की कॉज सामने नजर आ रही है, ओके कि जी डॉक्टर जी साहब आप जी इतनी बड़ी कॉज नजर आ रही है, व्हाई यू नॉट थिंकिंग अबाउट दिस, ठीक है ना। यूरिन आ रही, यूरिन सीएस, दिस आर द मोस्ट ठीक इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और यूरोडायनामिक्स हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में हमेशा उस टाइम कराते जी हैं जब आपने सर्जरी प्लान करनी होती है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में यूरोडायनामिक्स आर नॉट इंडिकेटेड अंटिल अनलेस प्रूवन अदरवाइज कि गो फॉर द सर्जरी, ठीक है ना। और डिलॉक्सिटीन इज वन ऑफ द ड्रग विच कैन बी गिवन टू द पेशेंट जबकि पेशेंट वेट कर रही हो सर्जरी के अपने टाइम के लिए, ठीक है ना। और दूसरी तरफ ओवर एक्टिव ब्लैडर में फर्स्ट लाइन आपकी ड्रग्स है, फिर ड्रग्स का ट्रायल जी फेल हो जाता है, फिर आपने यूरोडायनामिक्स करवाना है अपने पेशेंट का, ऐसे नहीं करवाना। अच्छा जी, इसके अलावा कोई और क्वेश्चंस, कोई और पूछना चाह रहा है, प्लीज रेज योर हैंड्स। डॉक्टर ड्रग्स कितने टाइम ड्यूरेशन देंगे हम? देखिए गाइडलाइन ने स्पेसिफाई किया हुआ है, अब नॉट श्योर अबाउट 6 to 12 वीक्स है, ये 6 to 8 वीक्स है, आपने 3 मंथ्स का ट्रायल। लेकिन रफली जो हम अगर प्रैक्टिकल बेसिस पे देखें तो हम जो है ना 3 मंथ्स का ट्रायल पे पेशेंट को देते देते हैं। ये आपकी ईबीएम में स्पेसिफाई लिखा हुआ है उन्होंने कि आपने कितनी ड्यूरेशन के लिए देना है, लेकिन 3 मंथ्स के लिए आप 12 वीक्स के लिए देते हो। 3 मंथ्स के ट्रायल के बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि रिस्पांस आ रहा है कि नहीं। अगर रिस्पांस आ रहा है फिर आप डोज एडजस्टमेंट करते हो, मजीद 3 मंथ्स के लिए देते हो। फिर पेशेंट अगर इंप्रूव नहीं होगा, स्टैटिक हो गया, वो डोज है, फिर रेगुलर फॉलोअप की भी ज़रूरत नहीं होती और फिर पेशेंट को उसी के ऊपर काउंसिल करके भेज देते हो। लेकिन ड्राई माउथ और जो एंटीमेस्क्रानिक के जितने सिम्टम्स हैं, साइड इफेक्ट्स हैं, उसके बारे में आपने काउंसिल करना है और पेशेंट को कहना है। अगर उसे सूट नहीं करती 3 मंथ्स के बाद तो यू गो फॉर द सेकंड लाइन। और सम जो यूरोलॉजिस्ट करते हैं, आप 2 ड्रग्स भी एट अ टाइम दे सकते हो। मतलब ये ट्रायल इतना ईजी नहीं होता, आपने तकरीबन 1 ईयर का ट्रायल देना होता है इतनी जल्दी हम सर्जरी के ऊपर, क्योंकि इसमें आगे सर्जिकल ऑप्शंस नहीं है ना। तो मीराबिग्रेन के कुछ यूरोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो डायरेक्टली गो फॉर द मीराबिग्रेन। हम तो ओटीडी से स्टार्ट करते हैं ना, लेकिन अगर आप किसी भी यूरोलॉजिस्ट के पास अगर आप किसी ओल्ड पेशेंट को भेजो ना तो वो डायरेक्टली गो फॉर द मीराबिग्रेन। आई हैव सीन मीराबिग्रेन से पेशेंट के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, तो वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स शो करते हैं। जी डॉक्टर एक सवाल ये है कि यूटेरो वेजाइनल प्रोलैप्स के पेशेंट्स के लिए ब्लैडर का अल्ट्रासाउंड पोस्ट वॉइड यूरिन के लिए मांगेंगे? यूवी प्रोलैप्स में डिपेंड, यस आप डेफिनेटली मांगेंगे, ठीक है। क्यों मांगेंगे, देखें अब आपने पेशेंट की आगे सारा प्लान करना है, आपने उसके सारे का, आप सर्जरी प्लान करने जा रहे हो ना, तो आपने अपने डायग्नोसिस के अकॉर्डिंगली सब कुछ प्लान करते हुए जाना है। अगर आपको लगता है कि पेशेंट का रेजिडुअल वॉल्यूम भी ज़्यादा रह रहा है, ठीक है, वेदर दैट इज सेकेंडरी टू दैट, तो इसका मतलब है कि इस प्रोलैप्स को निकालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा होता जाएगा तो वो पेशेंट के फ्यूचर में किडनीज की तरफ वो जो बैक फ्लो प्रेशर होता है टुवर्ड द यूरेटर्स उसको करेगा। तो आपने पोस्ट रेजिडुअल वॉल्यूम डेफिनेटली मांगना है। हम एब्डोमिनल पेल्विक अल्ट्रासाउंड भी तो करवाते हैं ना, उसमें प्रॉपर आप सारा करवाते हैं, तो इसलिए मांगना है जी। इसके अलावा एनी मोर क्वेश्चंस प्लीज। ठीक है जी, थैंक यू। अगर स्टिल यू हैव अ क्वेश्चन, जो लोग मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में हैं दे कैन आस्क मी ओवर देयर। आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आप लोग को समझ आ जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ठीक है जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।